Okay, so everyone, you will get a okay prompt, do it, and we'll start the meeting now. So, सभी को नमस्ते. Myself आशीष सूर्यवंशी, डायरेक्टर ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर. तो वेबिनार स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग कौन कहाँ से कनेक्टेड है, आपका क्या बैकग्राउंड है. ओके, मेडिकल फील्ड में आप हेल्थ प्रैक्टिशनर हो कि आप फ्रेशर हो और इस फील्ड में आप आना चाहते हो. तो ये सब चीज़ें जो है थोड़ा जानना मेरे लिए ज़रूरी है. अकॉर्डिंगली नॉब क्या है वो हिसाब से हम आगे प्रोसीड करेंगे. तो आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा. सो आई गो थ्रू. Yes, Suchit Gupta, sir is from nursing and he is from Bihar. Then from Varda we have Anshika Thakur ma'am. Yes ma'am, we are waiting for you to join our hands-on workshop. Then Dr. Samir we have from Hyderabad. He is a physiotherapist. Welcome Dr. Samir. Then Narayan sir we have from a Jurnar. Okay, he is from a pharma field. Sorry, Narayan Gao from we have a Kishore Varode sir. Yes sir, from pharma. It's great sir. I would like to teach the pharma candidates. They are very clever and they know the disease very well. And you can practice in a holistic way. And then Dimple Jain ma'am, she is from Kolkata. Okay, she is practicing acupuncture. Great. Then we have Rajesh sir, Rajesh sir from Nerul, Navi Mumbai. He is yoga and naturotherapist. Great sir. So you have did the BNYS or DNYS sir. And then Ashwini Kumar, he is a therapist. Okay. Shivani Mishra, ma'am from Lucknow. Okay. From UP we have Nomit Kumar sir. He is a fresher. Great sir. You are welcome and you are on the very right platform now. Then Ashwini Kumar from Delhi. Trupti Jain ma'am. She is a physiotherapist from Navi Mumbai. Then Namita Jagta from Malegaon. Yes, you are our colleague very nearby to the Nasik. And Rajesh sir has did DNYs. Okay. So we'll start. Let us give few minutes to join the people. And meanwhile, uh, may I mm, uh, know that from where you came across about the डिवाइन टच. कहाँ से आपको पता चला डिवाइन टच के बारे में और क्या प्लेटफॉर्म वो रहा, तो वो भी आप थोड़ा शेयर कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा. क्योंकि आप पहुंचे हो डिवाइन टच तक तो यही पे जो है ये दिखाता है कि आपको एक जेस्ट है, आप एक जेन्युइन हीलर बनना चाहते हैं. ओके, ना सिर्फ पैसा दिख रहा है या फिर अ, बस फैसिनेटिंग लग रहा है तो करना है, बट आपको रियल हीलिंग जो है डिलीवर करना आप चाहते हो. पेशेंट को रूट कॉज पे काम हो, अननेसेसरी काम उसके ऊपर ना हो, और इसलिए ये जेस्ट के पीछे भागते भागते ही आप जो है डिवाइन टच तक आए हो. और आपने मुझे सुना भी होगा. सो लॉट ऑफ people are saying that from Facebook, and anyone else is through customers or friends recommendation. Okay, Kishore sir from WhatsApp group. Okay, great. So most of the people are from Facebook, and through recommendation, does anyone has joined? Okay, Samir sir. Yeah. Okay. So people, uh, I would like to announce that we have a osteopathy expert in our today's meeting, Dr. Neeraj Shah. So I would like to welcome Dr. Neeraj Shah. Neeraj sir, are you there? Neeraj sir?
Okay, so whenever he will be online, his name is showing over there. He is practicing in his OPD on a patient. I just got a message. So once he come online, we'll get catch up with him. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं कि मैनुअल मेडिसिन, तो मैनुअल मेडिसिन क्या है? मैनुअल, it says that with the use of hands only we are going to perform this practic. Okay, so what are the therapies we have covered? तो इसमें जो है, सबसे पहले आपके पास अगर कोई पेशेंट हम बोलेंगे या फिर कोई भी व्यक्ति आपके पास आता है इलाज के लिए, तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम ये नहीं देखेंगे कि इसने कौन से कलर का टी शर्ट पहना है, ओके, या हेयर स्टाइल कैसा है। तो हम क्या देखेंगे कि उसका पोस्चर। तो ये पोस्चर एनालिसिस करते आना ये बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। और जब आप पोस्चर एनालिसिस में एक्सपर्ट हो जाएंगे, तभी आपको रूट कॉज जो है आइडेंटिफाई करने में मदद होगी। आज क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे जो मोटिव है वो रूट कॉज हीलिंग पे है। तो रूट कहाँ पे है किसी भी प्रॉब्लम का, वो जड़ तक जाके हमें उस पे इलाज करना है, ना कि सिम्टोम के ऊपर इलाज करना है। तो अभी क्या हो रहा है कि सिम्टोमेटिक ही काम पूरे प्रैक्टिस में हो रहा है। बोन सेटिंग करने वाले भी बहुत सारे हैं, लेकिन जनरली में जब फोन आते हैं मुझे इंक्वायरी के लिए, या फिर स्टाफ के थ्रू कोई कॉल्स डाइवर्ट हो जाते हैं, मैं जनरली पहला मेरा क्वेश्चन होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास कमर का दर्द लेके आ रहा है और आप बोन सेटिंग करते हो, या फिर सो कॉल्ड आप उसको कायरोप्रैक्टिक कहते हो, तो पहली बात तो कोई कायरोप्रैक्टिक बोल रहा है आपको, ये वर्ड भी यूज कर रहा है, तो समझना है कि उसको नॉलेज नहीं है क्या नॉर्म्स एंड कंडीशंस है ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करने के लिए, और कायरोप्रैक्टिक ये कोर्स एग्जैक्टली है क्या, तो हम इसे बोन सेटिंग कहेंगे। ओके, सो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट में जो हम काम करते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो इसे हम क्या कहेंगे? ट्रेडिशनल बोन सेटिंग ही कहेंगे। तो ये स्लाइड में यहाँ पे जो ये बंदा परफॉर्म कर रहा है, तो जनरली इसे कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट के नाम से ही हम समझते हैं, बट कायरोप्रैक्टिक जो है वो वास्ट कंसेप्ट है। या फिर स्टेप वही वैसे ही आपको लगेगी, लेकिन उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस है, वो उसके टेक्निकल्स में भी हम जाएंगे। बट हम जो एड्रेस करेंगे, यहाँ पे समझने के लिए मैंने कैरोप्रैक्टिक लिखा है, बट आप जो भी एड्रेस करेंगे खुद को, तो आप क्या कहेंगे? बोन सेटिंग या बोन सेटर ही कहेंगे। तो उसके भी वैलिड सर्टिफिकेशन इंडिया में है क्या? हम प्रॉपरली वो प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या? क्या क्वालिफिकेशन है तो हम कर सकते हैं? हम उसके बारे में भी आगे जानकारी लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेंगे कि पहले तो आता है आपका पोस्चर एनालिसिस। तो किसी के कमर में दर्द है और वो बंदा अगर आपके पास आता है, तो एज अ बोन सेटर आप मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। सिंपल कर देता हूँ, जो बोन सेटर है वो तो लिख देंगे कि लंबर रोल स्टेप करेंगे या जो भी है, बट आप इलाज कहाँ पे करेंगे, आवाज कहाँ से निकालेंगे? मतलब मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि आप जो आवाज निकालेंगे वो आप कहाँ से निकालेंगे, आपका क्या एक्सपेक्टेशन होगा और पेशेंट का भी क्या एक्सपेक्टेशन होगा कि अगर मेरे कमर में दर्द है तो किसी बोन सेटर ने कहाँ पे काम करना चाहिए, कहाँ पे जो है तोड़ना चाहिए, मोड़ना चाहिए। आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। और जनरली जब डॉक्टर के पास भी हम जाते हैं, तो नेक पेन है, बैक पेन है, तो हमें एमआरआई सजेस्ट किया जाता है इमिडिएटली। तो यस, लंबर पे ही काम करेंगे, तो एमआरआई इमिडिएटली सजेस्ट किया जाता है। तो इतने साल का प्रैक्टिस है, बट स्टिल सिम्टम्स देख के थोड़ा अंदाजा तो आ सकता है ऐसे मुझे लगता है, बट स्टिल उनको एमआरआई चाहिए रहता है। और एमआरआई रीड करके तो आपको भी पता चल ही जाता है क्या प्रॉब्लम है। तो पहले ही ना क्यों हम एमआरआई कर लें? तो एमआरआई की सच में ज़रूरत है क्या, कौन से केसेस में है वो भी जानना ज़रूरी होता है। बट क्या होता है कि कमर दर्द हो रहा है और मैं बोल दूंगा, क्या नेक में दर्द हो रहा है, मैं बोल दूंगा कि आप घुटने का एमआरआई निकालो, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होगा बराबर। तो जनरली हम लंबर का ही एमआरआई निकालेंगे, या फिर प्रैक्टिस जो करेंगे, जो रिप्लाई आ रहे हैं कि हम लंबर पे करेंगे, बैक पे करेंगे, जो भी है लंबर रोल करेंगे। तो यही है कि हम सिम्टोम पे काम करते हैं, वहां से आवाज आता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी देर के लिए वो नाइट्रोजन बबल्स बस्ट होते हैं, नर्व को वो
नाइट्रोजन जो है वो ठंडा होता है, नर्व को बहुत सूदिंग लगता है और पेशेंट को ऐसे लगता है मेरा दर्द जो है वो चला गया है, बट ये चीज नहीं है। ओके, तो हमें ये भी समझना बहुत जरूरी है। देन वो जो बैक पेन है उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं ये भी हमें देखना जरूरी है। तो किसी लंबर पेन के रूट कॉज क्या हो सकते हैं, तो कहाँ पे रूट कॉज है, या लंबर का जो अलाइनमेंट मिस हुआ है वो एग्जैक्टली क्यों हुआ है, हमारे फिट में कोई इम्बैलेंस है क्या, हमारा बॉडी वेट जो है वो इम्प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन उसका अगर हो रहा है, लेफ्ट राइट पे एक ही साइड में ज़्यादा वेट अगर बॉडी का आ रहा है तो भी स्पाइन पे एक्स्ट्रा बर्डन जो है वो आ सकता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है बॉडी का वो वहीं से लंबर से ही जाके गुजरता है, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। तो मायोफेशियल रिलीज, फिर उसके बाद आता है कि मायोफेशियल रिलीज। तो मायोफेशियल रिलीज क्या है कि मसल का फेशिया जो है वो डायग्नोस करके आइडेंटिफाई करके वो मसल चेन कहाँ पे डिस्टर्ब है बॉडी में, कहाँ पे उसका जो है फ्यूजन क्रिएट हुआ है उसको रिलीज करना। बिकॉज अगर ये स्ट्रेट फाइन स्पाइन है, या अगर बेंड हो रहा है तो क्या हो रहा है, कहीं पे तो मसल में स्टिफनेस क्रिएट हो रहा है और ये स्पाइन जो है ये बेंड हो गया है। तो वो मसल अगर रिलीज करते, या मैंने चलो सीधा कर दिया ना स्पाइन को, या आवाज निकाल लिया, या जो भी है मैंने थर्स दे के सीधा कर लिया, लेकिन मैंने मसल पे ही अगर टोनिंग पे काम नहीं किया तो ये एनाटॉमी ऐसे रहेगा क्या, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये अगेन कोलैप्स हो जाएगा। सो मसल्स इज अ रबर लाइक स्ट्रक्चर, तो जब तक हम उस पे काम नहीं करेंगे तब तक प्रॉपर मोबिलिटी जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम को नहीं मिलेगी और हम उसे मोबिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो चलो मैंने रिलीज तो कर लिया मसल को, लेकिन सिर्फ रिलीज करके होगा क्या, तो मुझे मसल को टोन करने की भी ज़रूरत है। तो मसल टोनिंग की बात आती है तब आता है ये ISTM, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मसल को टोन करते हैं, उनको भी एक अलाइन करने का काम हम करते हैं जिससे वो एनाटॉमी मेंटेन रहे। तो ये हर एक चीज़ के बारे में इन डिटेल हम डॉक्टर नीरज से जानने ही वाले हैं। देन हमारे पास आता है नेक्स्ट, जो है विसरल मैनिपुलेशन। तो विसरल मैनिपुलेशन में जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन है, जब आपका बॉडी का अलाइनमेंट अगर बिगड़ गया है, पेल्विक सपोज दैट आपका डिसफंक्शन है, टिल्ट है, स्पाइन आपका जो है वो स्कोलियोटिक हो गया है, तो जो भी इंटरनल बॉडी ऑर्गन है जो उस पे रेस्ट है उनका भी एनाटॉमी या पोजीशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उनके फंक्शन में भी वो कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, जिससे आपको और प्रॉब्लम्स जो है बॉडी में डेवलप होने लगते हैं, टॉक्सिन्स डेवलप होने लगते हैं और सिम्टम जो है और वर्स्ट होते जाते हैं। तो पेन जो आ रहा है वो पेन का रूट कॉज क्या है वो भी हम देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी हम ऐसे देखेंगे कि वो पेन जो है वो मस्कुलोस्केटल लगता है, लेकिन उसका रूट कॉज जो है कहीं पे तो विसरल में निकलता है। वो नेक पेन है लेकिन उसका रूट कॉज काफ में निकलता है, एंकल में निकलता है। ओके, तो ये सब चीज, लंबर पेन है लेकिन उसका रूट कॉज किडनी टोसिस में भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें समझने के लिए हम आगे जो है आपके सवाल भी आप रेडी करो, रेडी रखो, उसके ऊपर हम एक्सपर्ट से डिस्कशन भी ये लेने वाले हैं। ओके, तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो हम प्रोटोकॉल जो है हम कवर करते हैं। तो हमारा जब डिवाइन टच द ह्यूमन गैरेज में कोई व्यक्ति आता है, या जो मोडेलिटीज हम करते हैं, जैसे अल्टरनेटिव मेडिसिन में आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें ना, मुझे रोज फोन आते, सर आप एक्यूप्रेशर सिखाते हो क्या, आप एक्यूपंचर सिखाते हो क्या, आप फलाना फलाना ड्राई नीडलिंग सिखाते हो क्या, मर्म चिकित्सा है, न्यूरोथेरेपी है, बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। बराबर, कपिंग भी आप जाएंगे तो कपिंग में 50 तरीके की कपिंग है। तो रूट कॉज जहाँ पे हमें ट्रीट करना है, तो सब मोडालिटीज का अनुभव लेके काम करके समझ के फाइनली हम लोग शिफ्ट हुए ऑस्टियोपैथी पे। और उसमें जो है ये प्रोटोकॉल्स हम परफॉर्म करते हैं जिसमें हर एक जो प्रॉब्लम को हम टारगेट करना चाहते हैं या फिर जो पर्सन को हम टारगेट करना चाहते हैं वो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इसमें ही मिल जाता है। बाकी कोई इन्वेजिव या पेन मैनेजमेंट का काम करने की सिस्टम का यूज करने की नौबत हमें आती ही नहीं है। तो ये सब करते करते हुए, सीखते हुए, अनुभव के साथ हमने ये सब प्रोटोकॉल्स डेवलप किए हैं। जो 4 साल का हमारा मेहनत है, एक्सपीरियंस है, उसका पूरा सार हम आपको हमारे वर्कशॉप में देते हैं, ट्रेनिंग में देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम क्या क्या परफॉर्म करते हैं। स्केलेटल सिस्टम के लिए बोन सेटिंग एंड स्पाइनल अलाइनमेंट है, मसल रियल रिहैब के लिए मसल रिलीज है एंड मसल टूनिंग है। देन विसरल मैनिपुलेशन है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन का रिलीज है।
देन उसके बाद है क्लींजिंग थेरेपी भी हम करते हैं। तो जैसे किसी कार का एक गैरेज में जाने के बाद प्रॉपर सर्विसिंग होता है, उसमें ऑटोमेटिकली वो सब प्रॉब्लम एड्रेस हो जाते हैं, उसी तरीके से जब कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसे अगर हमें रिहैब करना है तो बॉडी एक एक पूरा यूनिट है, ये समझ के हमें काम करना है। ऐसे नहीं कि किसी पार्ट में प्रॉब्लम हो गया तो बस उस पे ही काम किया, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्यों आया उसके लिए बाकी जो प्रॉब्लम्स गाड़ी में है या फिर आपके मशीन में है वो एड्रेस करके उनको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर आने वाला लोड कम होने वाला है। और ये मेल फंक्शन करने की वजह से और बाकी कौन से पार्ट्स में प्रॉब्लम हुआ है या कॉम्प्रोमाइज हुए उनके रिहैब के ऊपर भी काम करना जरूरी है। तो ये सब सेटिंग करने के बाद फाइनली आता है फुट पोस्चर एनालिसिस, जिसमें जैसे हम कार का व्हील अलाइनमेंट करते हैं उसी तरीके से पेशेंट का जो है फुट स्कैनिंग करके उसके फुट में इम्बैलेंस क्या है उसको बैलेंस करके बॉडी वेट उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाएगा तब वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसका एडवर्स इफेक्ट उसके पोस्चर पे नहीं होगा, पोस्चर ठीक रहेगा जो हमने करके दिया है। और फिर वो पेन फ्री लाइफ जो है उसका सस्टेन होगा। और उसी के साथ हम पेशेंट को एजुकेट भी करते हैं हाउ टू रिहैब सेल्फ, उसका क्या वर्किंग प्रोफेशन है, प्रोफाइल क्या है, उसके लिए उसे क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, ये भी सब हम गाइड करते हैं। ओके, तो इसमें आप नीचे देखेंगे कि डिवाइन टच के हीलिंग पार्टनर्स भी आपको यहाँ पे दिखेंगे। सो आर हीलिंग पार्टनर्स आर, ओके, आप देखेंगे सीजी है, देन महिंद्रा है, थाइसन क्रप है, अडानी सीमेंट में भी हमने अभी जो है सेशन हमारा बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ, और आईटी कंपनीज में भी अभी अप्रोच हुए, तो इसमें और सारे ब्रांड आपके जुड़ते जाएंगे। तो ये लेवल पे जो है डिवाइन टच काम कर रहा है। और जब हम किसी कॉरपोरेट बड़े फर्म को टारगेट करते हैं तो उनका एम्प्लॉय साइज बहुत बड़ा होता है, उसको टारगेट के लिए हमें लगते हैं हीलर्स। और हीलर्स जो है वो जेन्यून हीलर चाहिए जो रूट कॉज पे काम करे, जिसके ऊपर आंखें बंद करके मैं विश्वास करूं कि ये काम सही से ही करेगा, अननेसेसरी काम नहीं करेगा। चलो पेशेंट ठीक हो ना हो, फायदा तो होने वाला है थेरेपी का, लेकिन ये पेशेंट बिगाड़ेगा नहीं, इसका कॉन्फिडेंस आना मुझे बहुत जरूरी है। तो ऐसे हीलर मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ क्या? नहीं, वो मेरे सामने मेरे हाथ के नीचे से ही ट्रेंड होना मुझे बहुत ज़रूरी है। और ट्रेंड होने के बाद जो अच्छा काम करेगा हमें 10 बार पूछेगा, क्वेरीज पूछेगा, या उसके सिटी में हम कैंप्स वगैरह लगाएंगे, यहाँ पे वो रेगुलर आ रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, तो वैसे एक एक हीलर जो है मुझे बहुत सारे बैचेस लेने के बाद मिलते रहते हैं। और उन्हीं को साथ में लेके ये काम को जो है मिशन हर घर हीलर के द्वारा, मिशन हर घर हीलिंग, ये हमें अचीव करना है। 2035 तक ऐसे जेन्यून हीलर सोसाइटी को हमें देने हैं। 5,000 हीलर्स का टीम ऐसा क्रिएट करना है जो माइंड बॉडी सोल तीनों एस्पेक्ट पे जो है हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है। और उनके थ्रू 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को अगले 9 साल के अंदर हमें जो है पेन फ्री लाइफ इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ माइंड बॉडी सोल प्रोवाइड करना है। तो ये मिशन के साथ डिवाइन टच काम करता है। आप भी ये मिशन से जुड़िए। तो एक प्रोफाइल अगर मैं मेरा आपको शेयर कर दूं तो होलिस्टिक हीलिंग, या फिर आप जिसे अल्टरनेटिव बोला जाता है, अल्टरनेटिव का नाम देके उसको डीमोटिवेट किया है, बट यही प्राइमरी हीलिंग है। तो ये सब मैनुअल और नेचुरल हीलिंग को लेके एक नेशनल टेलीविज़न पे, न्यूज़ चैनल पे जो है टेलीकास्ट भी हुआ है मेरा इंटरव्यू। देन दैनिक भास्कर ग्रुप ने भी मुझे अवार्ड और सब चीज़ें, इंटरव्यूज़ वगैरह ऑफर किए हैं। साथ ही में मैं आयुष इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का नॉर्थ महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और अजीत दादा पवार जी की जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसका भी डॉक्टर सेल में जो आयुष सेल है उसका भी नॉर्थ महाराष्ट्र का वाइस प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने अभी मुझे दिया है। तो ये सब चीज़ें कब मिलती है? क्योंकि पिछले 3-4 साल से डेडिकेटेडली ये काम कर रहे हैं, इसमें मेडिकल्स को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, और जिन्हें ये फील्ड में आना है उनके लिए भी हमने कोर्सेज डेवलप करके एक पैरामेडिकल कॉलेज, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पैरामेडिकल कॉलेज के साथ कोलैब करके कोर्सेज डिज़ाइन किए हैं, डेवलप किए, सर्टिफिकेशन डिज़ाइन किए, और उनको भी हमने मौका दिया है कि वो डिप्लोमा कंप्लीट करके ये फील्ड में आए। और एक बार आप फ्रेशर हो, डिप्लोमा कंप्लीट कर लेते हो, लेवल 1 का हमारा कोर्स कर लेते हो, देन यू, और उसके बाद आप प्रॉपर प्रैक्टिस करके आपके कम से कम 100 पेशेंट जो है आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे ही आप वो टारगेट अचीव कर लेते हैं तभी आप क्वालिफाई करते हो हमारे एडवांस ऑस्टियोपैथी के कोर्स के लिए। और
उसमें जब आप आते हो तब आपके रेड फ्लैग्स हट जाते हैं। अगर आप 100 में से अगर 70 पेशेंट कर सकते हो तो लेवल 2 करने के बाद आप 100 में से 90 पेशेंट जो है आप कर लेते हो। 10 हमारे नहीं है, ये समझ के चलो, ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो वो बिगड़ गए हैं या फिर उनको बिगाड़ा गया है। ओके, तो ये चीजें समझना भी जरूरी है, कौन सा पेशेंट मेरा है कौन सा नहीं है। वो आने पे हमें क्या कंसर्न लेना है पेशेंट से, स्टार्ट कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, ये लेवल तक भी हम आपको सब जो है यहाँ पे हमारे वर्कशॉप में या 1-to-1 पे गाइडेंस करते रहते हैं। ओके, सो इसी के साथ एक वो संस्कृति निर्माण करके संघ करके भी इनिशिएटिव है जिसमें पंचगव्य चिकित्सा, कैंसर के पेशेंट्स है उनके ऊपर भी काम, उनकी रहने की गो सानिध्य में रहने की व्यवस्था, ये चीज़ों पे भी काम होता है। देन अभी हम आते हैं हमारे कोर्स के बारे में। तो ये एक फ्लेक्सी लर्निंग मॉड्यूल हमने डेवलप किया है। आप हैंड्स ऑन के लिए आ सकते हैं, बढ़िया ही है। इफ़ आपको वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तो भी आप आपका लर्निंग जो है वो स्टेप बाय स्टेप आप स्टार्ट कर सकते हो। राजेश जी, थोड़ा मैसेज आप होल्ड कर लेंगे, ये सब आएगा सर, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स वगैरह सब आएगा। 1 घंटे का टाइम मैंने दिया है, उतना टाइम आपको बैठना है। देन उसमें अगर कुछ रह जाता है हम 1-to-1 के लिए क्वेरीज के लिए सेशन ओपन करें। तो ये ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में हम कंडक्ट करते हैं। और इसमें जो है फ्लेक्सी लर्निंग मोड है जिसमें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस ले सकते हो। वो एक एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दूसरा अनलॉक होते जाएगा। और स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करते करते आप जैसे ही वो पूरा मॉडल कंप्लीट कर लेंगे आपको मेंटोर्स को कुछ वीडियोस भी भेजने रहेंगे। रिटर्न में उनको इवैल्यूएट किया जाएगा। आपके पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स उनके ऊपर लाइव काम करते हुए कि आपको वीडियोस भेजने, तो ये तरीके से ये जो इवैल्यूएशन करके आपका वो पूरा करिकुलम कवर भी किया जाता है। लेकिन ये ऑनलाइन मॉडल जो है ना, वो सिर्फ एग्जिस्टिंग हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के लिए ही है। और अगर अगर कोई फ्रेशर है और उन्हें ये फील्ड में आना है तो उन्हें बोन सेटिंग का डिप्लोमा करना ज़रूरी है और हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए यहाँ पे आना भी ज़रूरी है। और उनके लिए भी थ्योरी लेक्चर जो है रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करके रखे हैं। ओके, सो ये डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है जो भारत सेवक समाज का है। तो हम इसके ऊपर भी आएंगे, इससे पहले नीरज शाह सर ज्वाइन हुए हैं, तो सर को मैं वेलकम करता हूँ। गुड इवनिंग सर, वेलकम टू द वेबिनार। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो नीरज सर इज आर ऑस्टियोपैथी एक्सपर्ट और वो ट्रेनर भी है हमारे। और सर के द्वारा ट्रेनिंग लेने के बाद अ, बहुत सारे डॉक्टर से या फिर जो 7-7 साल से ये सब फील्ड में कायरोप्रैक्टिक कर रहे हैं या मैनुअल थेरेपी में काम कर रहे हैं, उनका भी कहना है कि 60% ग्रोथ जो है ये 3 दिन के वर्कशॉप में हमें मिला है। या फिर ऐसे कंसेप्ट हमने सीखे हैं जो हमारे पूरे डॉक्टर के करियर में, या अभी फिजियोथेरेपिस्ट ने भी एक रिव्यू दिया था कि पूरे फिजियोथेरेपी के करियर में हमने कभी ये तरीके की सोच हमने डेवलप नहीं की, या फिर ये चीज़ों के बारे में हमें मालूम ही नहीं था। उसका एक एग्जाम्पल है कि फेशियल मैनिपुलेशन, ये क्या है, कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बट ये अनटच रह गया है, ये हिडन एनाटॉमी हमें मालूम नहीं है। और ये जो है पूरा आपको समझ में आए ऐसे भाषा में और मिनिमम टू मिनिमम टाइम में आपको डिलीवर करने का स्मार्ट वर्क जो है वो डॉक्टर नीरज शाह करते। सो नीरज सर, वेलकम। यस सर। यस। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। यस, तो सर मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग थोड़ी देर के लिए स्टॉप करता हूँ। अ, यस सर। हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेंगे सिम्टम्स वगैरह के बारे में। जैसे पहले मैं बता रहा था कि अगर लंबर पेन है, किसी को बैक में पेन है, तो जनरली हम कहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे। तो वहाँ पे रिप्लाई आए थे कि बैक में करेंगे, लंबर में ही करेंगे। तो यही रिप्लाई आते हैं, बट बैक पेन जो है वो एक सिम्टम है, उसके रूट कॉज कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, या फिर प्रैक्टिस करना है तो एग्जैक्टली हमें क्या देखना है, प्रैक्टिस क्या बोलते हैं, मैनुअल थेरेपी एग्जैक्टली है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे सर। यस। तो बैक पेन क्यों है? तो जैसे आपने सवाल पूछा कि अगर बैक पेन है तो हम कहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे, तो आपको जवाब आया कि लंबर में मैनिपुलेशन करेंगे। यस। तो यही जो आजकल सब जो वीडियोस वगैरह देखते हैं लोग सोशल मीडिया पे, जो वीडियोस डालते हैं लोग,
उसको देख के इन्फ्लुएंस होके लंबर रोल। लेकिन उसका बैक पेन, अगर उसको कॉन्स्टिपेशन है तो भी उसको बैक पेन हो सकता है। उसका अगर फ्लैट फीट है तो भी उसको बैक पेन हो सकता है। अगर उसका एंटीरियर पेल्विक टिल्ट है तो भी उसको बैक पेन हो सकता है। तो देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस की बैक पेन क्यों हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि बैक पेन होगा तो हमको लंबर रोल ही देना है। हम सर्वाइकल मोबिलाइजेशन करके भी बैक पेन कम कर सकते हैं। हम प्लांटर फेशिया रिलीज करके भी बैक पेन को कम कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी एक वन यूनिट है। तो जनरली क्या होता है, हम सब लोग जो है सिम्टम को ट्रीटमेंट करते हैं और रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते हैं। और रूट कॉज, तो नाम ही क्या है, रूट कॉज। तो रूट, पेड़ है तो उसके रूट्स है, तो रूट्स कहाँ होंगे उसके, जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे, तो जमीन के नीचे। तो वैसे ही हमारे बॉडी का रूट कॉज जो है हर चीज का, वो हमें पैरों में ही मिलेगा। क्योंकि पैरों का काम है बॉडी स्टेबल रखना, और हाथों का काम है बॉडी फ्लेक्सिबल रखना। तो जब जिस चीज के लिए पैर है स्टेबिलिटी के लिए, वही अगर स्टेबल नहीं है, तो आपका ऊपर का स्ट्रक्चर कभी स्टेबल नहीं हो पाएगा। और फिर आपको बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, नी पेन, ये सारी चीजें होंगी। तो हम जो 3 दिन में हम जो वर्कशॉप लेते हैं, जो सिखाते हैं, तो उसमें हम रूट कॉज कैसे ट्रीट करना है यही हम सिखाते हैं। रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है, क्योंकि सबसे मेन चीज जो है वो यही है। पेशेंट आता है सर्वाइकल पेन लेके, हम उसको वीडियो देखते हैं कि वो उसको सर्वाइकल का थ्रस्ट दे रहे हैं, कोई वो उसको सर्वाइकल को जोर से झटका दे रहे हैं। और लेकिन वो सर्वाइकल के पहले आपने वो असेसमेंट ही नहीं की है कि उसका प्रॉब्लम क्या है, कि सर्वाइकल पेन क्यों हो रहा है। अगर उसका लंग डिसफंक्शन होगा, डायफ्राम ब्रीदिंग नहीं होगा, तो भी उसको लेफ्ट साइड में नेक में पेन होगा। अगर गैल स्टोन है या गैल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम है, तो भी उसको राइट लेफ्ट साइड में पेन होगा। अगर उसके लीवर में प्रॉब्लम है, फैटी लीवर है, तो भी उसको शोल्डर पेन होगा। अगर किडनी टोसिस में है तो भी उसको नी पेन होगा। तो ये जो सारी चीजें है, रूट कॉज आइडेंटिफिकेशन, यही सबसे मेन पार्ट होता है। कि हम आजकल जो वीडियोस वगैरह देख रहे हैं कायरोप्रैक्टिक के, कायरोप्रैक्टिक आजकल एक फैसिनेशन हो गया है सबके लिए। कि हमें बहुत वो आवाज, और बोलते हैं कि 10 साल से मेरे को तकलीफ थी और वो एक ही सीटिंग में खत्म हो गई। ऐसी कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं है कि इतने सालों का पेन एक ही सीटिंग में वो गायब कर दे। क्योंकि पेन क्यों हो रहा है, पेन के पीछे भी देर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। अगर पेशेंट की कोई हिस्ट्री है, कभी वो गिरा है, बचपन में गिरा है, उसका कोई फ्रैक्चर है, उसका कोई सर्जरी हुआ है, तो भी उसको पेन होगा। अगर उसकी विटामिन B12 डिफिशियंसी है, विटामिन D3 डिफिशियंसी है, तो भी उसको बैक पेन होगा, तो भी उसको नी पेन होगा। ये एक सबसे मेन रीजन है। क्योंकि आजकल हम लोग जो है, हर कोई जो है वो IT प्रोफेशनल है, बिजनेसमैन है, वर्किंग वुमन है, वर्किंग प्रोफेशनल है, या फिजियोज है, डॉक्टर्स है। वो 24 घंटे जो है वो एक मैन मेड लाइट के अंडर होते हैं, और मैन मेड फ्रीक्वेंसी के अंडर होते हैं। AC, वाईफाई, मोबाइल, और हम सन लाइट जो है वो हमारे बॉडी में पेनिट्रेट ही नहीं हो रही है, हम सन रेज ले ही नहीं रहे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, विटामिन डिफिशियंसी हो रही है, इसीलिए हम एक्सटर्नल विटामिन मिनरल्स ले रहे हैं, विटामिन B12 के इंजेक्शंस ले रहे हैं, कैल्शियम D3 की मेडिसिन ले रहे हैं। लेकिन नेचुरल जो सोर्स है वो ही नहीं ले रहे हैं। तो बैक पेन या कोई भी पेन, उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, अगर विटामिन D3 डिफिशियंसी भी है, कैल्शियम डिफिशियंसी है, तो भी आपको ये पेन होगा। और अगर कैल्शियम डिफिशियंसी है, और अगर आप वो पेशेंट को बार बार थ्रस दे रहे हो, तो वो भी उसके लिए इन्फ्लेमेशन क्रिएट करने वाला है उसके वर्टिब्रास में। सबसे पहले तो कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी या ये ट्रेडिशनल बोन सेटिंग, इसका बेस क्या है हमको यही पता नहीं है सर। यस। कि बस कायरोप्रैक्टिक मतलब क्या, पेशेंट आया, उसको लिटाया, उसको इधर से झटका दिया, इधर से ऐसा झटका दिया, पलंग पे चढ़ के झटका दिया, और हो गया।
और ऐसे ऐसे, हाँ देखो आया आवाज, आया आवाज। कुछ कुछ तो लोग अभी वो माइक जो है, माइक भी उधर ऐसे रख के और फिर वो दिखाते हैं कि देखो मेरा कितना अच्छा आवाज आया। हमको आवाज के पीछे जाना ही नहीं और है। इसमें जैसे अभी कल हमने डिस्कस कर रहे थे, हम एक केस जी। जिसको अगर सर्वाइकल का ये आवाज निकालने का थ्रस्ट देते हैं, निकालना, तो हाँ उससे हाँ। वो पेशेंट, अगर वो बेश। पेशेंट हम किसी ऐसे बोन सेटर को दे देते हैं तो वो तो कोमा में डेफिनेटली ओह, जाएगा। तो वो जी। केस क्या था वो भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी का केस है सर। और हम्म। उसका मतलब सबसे पहले कोई भी केस करने पहले हमको असेसमेंट डायग्नोसिस करना है। वो आप एमआरआई रिपोर्ट देखते हो, उसमें दिख रहा है C4 C3 डिस्क बल्ज है, ऑस्टियोफाइट्स है, या ये सारी चीजें है। लेकिन आपका फिजिकल असेसमेंट जब तक आप नहीं करते हो, तब तक आप उसका स्किन टेक्सचर है, टिश्यू टेक्सचर है, रेंज ऑफ मोशन एबनॉर्मलिटी है। अभी जो ये देखते हैं आप वीडियोस, जो वीडियो हमने एक देखा कि उसमें एक ट्रेनर है। वो ट्रेनर जो पार्टिसिपेंट्स है उनको वो सर्वाइकल थ्रस्ट सिखा रहा है। और वो थ्रस्ट के लिए उसको क्या बोल रहा है कि ऐसे पेशेंट को ऐसे गर्दन पकड़ना है, पेशेंट के सामने खड़ा रहना है, और पेशेंट की गर्दन ऐसे करनी है, और जिसके आगे उसकी गर्दन नहीं जा रही है उधर उसको ऐसा झटका देना है। ये लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज में उसमें एक और वर्ड मतलब, था कि पेशेंट का जो सिर है हाँ, उसको सिर है, आपके मुंह के तरफ आपकी उठाना तरफ है देखने और लगाना है। फिर उसको हाँ झटका मतलब देना है। हम जो कपल्स वगैरह कॉफी शॉप में बैठ के, मतलब ये कॉलेज वाले कपल्स करते ना, नैनो से नैन मिलाना या आंख मिचोली खेलना, वो उस टाइप का थोड़ा कि पेशेंट को आपके तरफ देखने लगाना है और फिर ऐसे करना है। और जहाँ पे उसकी गर्दन रुक गई, अभी इसके आगे जा नहीं जा रहे, फिर उसको ऐसे झटका देना है। लेकिन उसका सर्वाइकल फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लैटरल फ्लेक्शन, ये कितना डिग्री नॉर्मल है वो असेसमेंट ही नहीं है। रोटेशन कितना डिग्री है, फ्लेक्शंस 45 डिग्री, 90 डिग्री, ये कुछ पता ही नहीं है। और थ्रस्ट कहाँ पे देना है, वो थ्रस्ट का फिलोसॉफी क्या है, हाँ। बोन सेटिंग का या पीछे। कायरोप्रैक्टिक का फिलोसॉफी क्या है, ये पता ही नहीं है किसको। यस। तो यही सब चीजें है सर, इसके ऊपर हम और बात करेंगे। उसमें और एक वीडियो था, बेड पे चढ़ के जो है वो स्पाइन के ऊपर हाँ क्रैक कर रहा था। तो ये केस हाँ। में तो रिब स्लिप होना वगैरह ये होता है, और बहुत सारे लोगों ने कहीं पे तो और ट्रेनिंग लिया होता है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर वो जो उनके कॉल जो है वो डिवाइन टच को आते। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी एक इसमें रिप्लाई आया कि पेल्विक अलाइनमेंट किया जा सकता है। यस, किया जा सकता है, सब किया जा सकता है, लेकिन उसका रूट कॉज क्या है वो समझने के बाद वो चीज़ें करनी है। जिसकी ज़रूरत ही नहीं है वो चीज़ें करनी भी नहीं है बॉडी से। और एक बात मैं बता दूं, आज प्रैक्टिस क्या चल रही है, चाहे उसने बोन सेटिंग का कोर्स किया है, कायरोप्रैक्टिक का किया है, ट्रेडिशनल बोन सेटिंग किया है, जो भी किया है, पेशेंट आता है, उंगली से स्टार्ट करते हैं और गर्दन तक झटका देते हैं, या कोई गर्दन से स्टार्ट करता है उंगली तक पूरा पेशेंट को झटका देता है। पेशेंट को भी वही बोनस में, चाहिए, वो बोनस भी में ये भी करते हैं सर, हाँ, बोनस में खान भी बजा देते हैं। कान और तो ये पेशेंट नाक। को भी वही चाहिए, तो ये काम करना नहीं है, इससे बॉडी है ना ट्रॉमा में जा रही है, और अननेसेसरी चीजें हम बॉडी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कोई मैसेज अभी मुझे आया कि सर वो नया नया होगा, ऐसे मैसेज डाला है अभी अश्विनी सर ने। तो नया है तो उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रॉपर वे में प्रॉपर फैकल्टी से प्रॉपर चीज़ सीखे। नया है मतलब हम किसी के बॉडी पे भी कुछ भी खेल लेंगे। तो ये डेलिकेट है, इसीलिए मैंने ना ग्रुप पे वो वीडियो डाला था, और अभी स्टार्टिंग में भी मैंने वो वीडियो चलाया था कि वी आर प्लेइंग विथ समवंस लाइफ। ओके, तो ये चीजें समझना है। और ये बहुत बड़ा कुछ ऐसा समझना रॉकेट साइंस है ऐसा नहीं है। कुछ टेस्ट है, कुछ चीजें है, कुछ सिम्टम्स है, कुछ क्वेश्चंस है, वो पूछने हैं। और एमआरआई में भी कुछ आइडेंटिफिकेशंस है। तो कौन से केसेस में आपको एमआरआई देखना जरूरी है वो भी हम देखेंगे। फ्रेशर है तो 100 में से 70 केसेस वो कर लेगा। मेडिको है 100 में से 80 कर लेगा। और एडवांस अगर किया है उसने ऑस्टियोपैथी वगैरह, तो वो जो है 100 में से 90 या 95 कर लेगा। लेकिन 5 पेशेंट मेरे नहीं है, ये हर बार दिमाग में डाल के चलो। मैं देख रहा हूँ 4 साल से लोगों को प्रैक्टिस करते हुए, कुछ भी नहीं छोड़ते, किसी को नहीं छोड़ना है। हर एक से वो आया है ना कुछ वसूल करने, कुछ ना कुछ लेना ही है। लेकिन आप अगर गलत पेशेंट को छेड़ देंगे, हाथ लगा देंगे, हाथ आपने लगाया, वहां से उसको जो भी
सिम्टम्स रेडिएट होने लगेंगे, वो हिस्ट्री उसका पिछले 10-20 साल का है, लेकिन वो सब जो है आपके ऊपर आ जाएगा और फिर आप उसमें फंस जाएंगे। और ये चीज के लिए सावधानी बरतना यही एक मात्र सॉल्यूशन है। अगर आप इसमें से सेफली प्रैक्टिस करके बचना चाहते हो, या ऐसा कोई फिर केस आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है, तो फिर आप क्या करेंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो ये भी सब चीजें हैं। तो इसीलिए तो ये सब डिवाइन टच कर रहा है ना, ये सब चीजों को अंडर वन प्लेटफॉर्म आ रहा है। ये सेल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे जा रहे हैं। लीगल हमारे भी एडवाइजर्स है जो आपको ऐसे कुछ केसेस में आपको हेल्प भी करते हैं। तो ये पूरा सपोर्ट हम हमारे स्टूडेंट्स को देते हैं, बिकॉज हमें एक कम्युनिटी डेवलप करना है। हमें अपना सिर्फ लेके काम करना ऐसा नहीं है, टुगेदर वी विल स्टे स्ट्रांग। तो सबको एकजुट होके एक साथ काम करना ही इसमें जो है हम सबकी प्रैक्टिस को सेव करेगा और सबको आगे बढ़ने के लिए एक जरिया ये हो जाएगा। तो मिशन हर घर हीलर में आप ज्वाइन कीजिए। यस सर, अभी हम थोड़ा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, देन हम आएंगे यस टेक्निकल क्वेरीज पे। आपके यस अगर सर। पेशेंट है सर, आप कर सकते हैं, वी हैव अ ओके 15 मिनट्स। ओके सर। यस, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे थे कि हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी हम कंडक्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड है। बोन सेटिंग का डिप्लोमा भी अवेलेबल है। कोई पूछ रहा था कि WHO अप्रूव्ड है क्या, आपके पास होगा कोई तो मुझे भी बता दो, हम वो भी सिखाएंगे। लेकिन जो फ्रेशर ये फील्ड में आना चाहता है वो तो डेफिनेटली उसको एडमिशन नहीं ले पाएगा। कोई MPT किया है वो बंदा जो है वो ऑलरेडी जा रहा है, वो तो सीख रहा है, लेकिन जो कोई बोन सेटर का हमारा काम कर रहा है या फिर हीलर काम कर रहा है, उसको तो उसमें एडमिशन भी नहीं मिल रहा है। तो वो लोगों के लिए कौन है? और फिर उनको एजुकेट करना ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस रोकेंगे नहीं, लोग तो उनके ऊपर उनके पास जाना छोड़ेंगे नहीं। तो समय रहते उनको एजुकेट कर दिया तो उनके पास आने वाले लोगों का नुकसान होना भी बच जाएगा, और ये भी अपने आप में कंफ्यूजन में प्रैक्टिस नहीं करेगा। आज अच्छे अच्छे हीलर्स को या डॉक्टर्स को भी मैंने देखा है जिन्होंने ऑस्टियोपैथी के कोर्सेज भी किए हैं, लेकिन फिर भी वो तुक्का ही लगाते हैं, ये करके देखो वो करके देखो, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो वापस दूसरा कुछ करके देखो। मतलब क्या हुआ है कि एक अभी बंदा मेरे पास आया था, उसने लगभग 12 लाख रुपया खर्चा किया ये सब कोर्सेज करने में। वो सिंगापुर भी जाके आया है, वो कनाडा के लोग इधर आते उनके पास से भी सीखा है, वो जो है सब सीखा है। लेकिन वो सबका सिंक्रोनाइजेशन ही वो लगा नहीं पा रहा है कि आप चलो मेरे पास मत सीखो, आप माया फेशियल रिलीज कहीं और से सीख लो, आप ISTM कहीं और से सीख लो, आप विसरल मैनिपुलेशन कहीं और से सीख लो, ऑस्टियोपैथी के आर्टिकुलेशन कहीं और से सीख लो, कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग कहीं से और से सीख लो। लेकिन जब पेशेंट आपके पास आता है तो ये सब विसरल, मसल, स्केलेटल, नर्वस सिस्टम, ये सब का एक दूसरे में क्या कनेक्शन है, ये कैसे फंक्शन करते हैं, तो वो उनके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ट्रीटमेंट देना, ये समझने में ही है ना बहुत समय लग जाता है, या फिर वो उसमें समझ में नहीं आता है। तो मेरे पास मसाले तो सब है, इंग्रेडिएंट सब है, लेकिन खिचड़ी पकती नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है। तो ये अप्लाइड नॉलेज जो है ना, वो हम आपके लिए लेके आते हैं। तो ये पूरा गीता हम पढ़ते बैठेंगे तो उसमें आपका भी समय जाएगा, हमने वो किया है। अभी क्या है, हमने आपके लिए वो सार बना के रखा है। तो आप काम करो, उसमें चैलेंजिंग केसेस आते जाएगी, हम आपके लिए लाइफ टाइम यहाँ पे खड़े हैं, वो केसेस पे हम भी लेंगे। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो 3 लोगों ने मुझे अभी किसी ने कंसल्टेशन के लिए कोई MRI शेयर करा है, कोई क्या कर रहा है, मैं उनको अभी रिप्लाई दे रहा था। ओके, तो ये सपोर्ट भी हमारा कंटिन्यूसली चलता है। एक कोई अर्जेंट है तो अर्जेंट लाइव पे भी वो पेशेंट को अगर देखना है, कंसल्ट करना है, उसका पोस्चर एनालिसिस करना है, वो लेवल तक का भी सपोर्ट हम देते हैं। तो सिर्फ ट्रेनिंग या वर्कशॉप नहीं है, उसके बाद का सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। और बहुत सारे कायरोप्रैक्टर में बोल रहा हूँ कि जिन्होंने फॉरेन से डिप्लोमा किया है वो भी हमारे पास आते हैं, वर्कशॉप अटेंड करते हैं, और अपग्रेडेशन उनको मिला है, और हमारे सपोर्ट के लिए वो हमसे जुड़ते भी है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक अप्लाइड नॉलेज के थ्रू हम ये सब दे रहे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परफॉर्म करते हैं। आप जब जुड़ेंगे तो अब आपको समझ में आएगा। तो BSS का मैंने डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको दिखाया था ये। ओके, सो ये हमारा 1 ईयर का डिप्लोमा है।
तो इसका प्रॉपर एग्जामिनेशन होता है, प्रैक्टिकल्स होते हैं। जब आप यहाँ पे आते हो वर्कशॉप के लिए, तो वो प्रैक्टिकल्स का जो पूरा करिकुलम है वो तो 3 दिन में हम कवर कर लेते हैं। अराउंड हम बोन सेटिंग के लिए 16 आवर्स का पूरा प्रैक्टिकल सेशन 2 दिन में हम कवर करते हैं, 1.5 दिन में। और फिर लेवल 2 का भी करते हैं, तो लेवल 2 का 12 आवर्स का ऐसा पूरा हम 16 आवर्स, 28 आवर्स का, 28 to 30 आवर्स का पूरा जो प्रैक्टिकल सेशंस है वो हम 3 दिन में जो है कवर कर लेते हैं। सो अराउंड 10 आवर्स पर डे जो है हमारा प्रैक्टिकल चलता है। और स्टूडेंट्स तो रात को 10-10, 11-11 बजे तक भी प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि प्रीमाइसेस हमारा ही है पूरा। ओके, तो ये डिप्लोमा कैसे कंडक्ट किया जाता है क्या है, तो जब आप यहाँ पे आते हो तो वापस वो आपके सब एडमिशन फॉर्म वगैरह सब फॉर्मेलिटीज हो जाती है। पैरामेडिकल कॉलेज वो टेक केयर करता है। और उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन जब भी रहता है, उसके लिए भी आपको इन्फॉर्म किया जाता है। उनके जो जो करिकुलम में दिसंबर और मई में एग्जाम्स रहते हैं, वो कैसे अटेंड करना है, आपका नियर बाय कोई सेंटर है क्या, ये सब चीज़ों को गाइडेंस करके फिर आपके क्वेश्चंस पेपर जब हमारे पास आ जाते हैं, आपके आंसर शीट्स वगैरह, फिर उनको इवेल्युएट करके प्रोसेस करके आपको डिप्लोमा अलॉट किया जाता है। ये प्रॉपर वे से ये सब चीज़ें होती है। फिर इसके बाद एक और चीज़ हमने आपके लिए ला के रखी है कि काउंसिल, कि जैसे बहुत से लोग बोलते हैं ना सर, काउंसिल में मेरा फिजियोथेरेपिस्ट है तो उसको काउंसिल में जाना है, हर एक डॉक्टर को काउंसिल में जाना है। तो अभी बोन सेटिंग के लिए क्या करेंगे, बराबर, अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं, एक्यूपंक्चर का अभी बन गया है, तो ये बोन सेटिंग के लिए भी आएगा, नेचुरोपैथी का अभी बन रहा है। तो बोन सेटिंग किस कोर्स के करिकुलम में आती है, तो आज के डेट में पूरा कंफ्यूजन है इसके लिए। तो इसीलिए आज के डेट में जो कोई भी कुछ भी कर रहा है, कैसे भी बजा रहा है, कुछ भी सर्टिफिकेशन दे रहा है, वो सब चल रहा है, लेकिन ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। तो इसको एक प्रॉपर वे में लाना जरूरी है। तो अभी जो कर रहे हैं प्रॉपरली, उनको एक कहीं पे तो गाइडलाइन होना बहुत जरूरी है ना, कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ओके, कौन से आप कंडीशंस के अंडर ये कर सकते हैं। तो इसके लिए बीएसएस जो है वो अभी इट्स अ फैकल्टी ऑफ वर्ल्ड स्किल काउंसिल अल्सो। तो इनका लंदन में ऑफिस है। तो वर्ल्ड स्किल काउंसिल के अंडर भी जब आप इलिजिबल हो जाते हो, आप कम से कम 100-200 पेशेंट कर लेते हो, आपके कुछ वीडियोस भी हमें आपको सबमिट करने होते हैं, एंड व्हेन वी गेट सेटिस्फाइड, सो वी हैव द राइट, द कॉलेज हैव द राइट टू रेफर दैट स्टूडेंट फॉर द वर्ल्ड स्किल काउंसिल। तो इसमें आप वर्ल्ड स्किल काउंसिल का भी रजिस्ट्रेशन आपको जब मिलता है, तो फिर आपका एक ऑथेंटिक रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इनका जो सर्टिफिकेशन है वो अराउंड 12 कंट्रीज में वैलिड है, जहाँ पे आप थेरेपी जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, सो ये और एक अचीवमेंट हम आपके लिए लेके आए। इसके अलावा भी आपके जो भी चैलेंजेस है, आप बाकी भी थेरेपीज देना चाहते हो, तो उनके लिए भी कोर्सेस है। आप जैसे क्लींजिंग थेरेपी हम करते हैं, तो फिर उसमें आपका नेचुरोपैथी होना ज़रूरी है क्या, या आप कहीं पे स्नेहन स्वेदन ही आपको करना है, लेकिन आप पंचकर्म थेरेपिस्ट नहीं हो, तो उसके लिए कुछ वैलिड सर्टिफिकेशन है क्या, कहाँ पे कोर्सेज, तो ये भी चीज़ें जो है हम आपको गाइड करते रहते हैं। बट हमारा जो फोकस है वो पूरा मैनुअल मेडिसिन पे है, क्योंकि इसमें ही सब कवर होता है, बाकी सब दुनियादारी करने की कोई ज़रूरत ही आपको नहीं है। ओके, और ये फास्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे है एंड सेफेस्ट वे है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, हम चटका भी रहे हड्डी जो भी आप कर रहे हो, ओके, तो उसमें थर्स्ट कितना देना है, क्या वेलोसिटी रखना है, उसमें कहीं पे भी थर्स्ट नहीं देना है, उसको मोबिलाइज करना है। अभी आपको लगता है कि नहीं सर आवाज निकलना चाहिए, वो पेशेंट भी उसके लिए आता है, आवाज निकलता ही है, लेकिन उसके लिए झटका देने की जरूरत ऐसा नहीं है। पेशेंट के बॉडी वेट का यूज करके ही आप जो है मैनिपुलेशन आराम से मोबिलाइज करके अचीव कर सकते हो। तो ये सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक है। अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है तो कहीं पे भी उसको मरोड़ना मोड़ने की जरूरत नहीं है। आप आपके कैसे आप आपके फीट को या पेशेंट के फीट को, एंकल को मोबिलाइज करके भी सर्वाइकल को अलाइनमेंट करने का टारगेट जो है आप कर सकते हो। तो ये सब अमेजिंग चीजें जो है ना यहाँ पे हम आपको बताएंगे, और ये सेफ एंड इनडायरेक्ट टेक्निक है सर। सो डायरेक्ट नहीं है। अगर कोई पार्ट ऑलरेडी पेन में है, किसी के नी में प्रॉब्लम है, ऑलरेडी कंप्रेशन है, और उसको और आप झटका देंगे, हिलाएंगे, तो वो तो और इंजर हो जाएगा ना। पहले ही आइडेंटिफाई करो कि वो कंप्रेशन में क्यों आया, एक्सेसिव बॉडी वेट वो एक साइड में जा रहा है क्या, वो नी पे क्यों आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, क्योंकि बाकी जगह पे वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। बाकी जगह पे क्यों डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है, तो कहाँ पे एनाटॉमी बिगड़ गया है।
तो पहले उसको सुधारो और इसके ऊपर आने वाला जो प्रेशर है वो रिलीज करो, उसको डीकम्प्रेस करो। और जब वो डीकम्प्रेस हो जाएगा तब वो मोबिलिटी के लिए फ्री हो जाएगा। फिर आप उसको सेकेंड या थर्ड सिटिंग में उसकी अलाइनमेंट कर सकते हो। तो ये तरीके से काम होना जरूरी है। हम किसी रिजिड बॉडी पे काम नहीं कर रहे हैं, हम ह्यूमन बॉडी पे काम कर रहे हैं। इसके स्पेयर्स भी कहीं कहीं अवेलेबल नहीं है। और मशीन तो चलो नहीं बोलेगी, लेकिन ये मशीन बोलती भी है तो गलत काम हो जाएगा, तो प्रॉब्लम भी आपको हो जाएगा। ओके। तो जहाँ पे आपका दिमाग काम करना बंद हो रहा है ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, वहां पे वो चीज को छोड़ देना या फिर एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके फिर ही उस पे काम करना, ये जरूरी हो जाता है। लेकिन हमारे प्रैक्टिस में लोग वो नहीं करना चाहते। हम साथ मिल के काम करने के लिए मैं बोलता हूँ, इसका कुछ अलग एक्सपर्टी है, उसका कुछ अलग एक्सपर्टी, तो हर एक बंदा अपने एक्सपर्टी पे ही फोकस करके उसमें एक्सपर्ट बनेगा नहीं। लेकिन सबको सब करना है। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं, वो 20-20 तरीके के कोर्सेज करते, सर मैं ये भी करता हूँ वो भी करता हूँ, वो पूरा उसका 10 फीट का बैनर भी बनाएंगे ना, तो भी वो भी कम गिर जाएगा, उसने इतने कोर्सेज किए रहते। उसमें वही बेचारा कंफ्यूज रहता है कि करना क्या है पेशेंट को। लेकिन बॉडी इज अ वन यूनिट, सिंपल है, ये नजरिया डेवलप करो। एक यूनिट को देखते वक्त आपको समझ में आएगा कौन सा कैसे कनेक्शन है, काइनेटिक चेन कैसे है, उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हम देते हैं। तो उसका भी एक डायग्राम रहेगा, तो हम लास्ट में लेंगे। तो काइनेटिक चेन क्या है, कैसे डिस्टर्ब होता है, फीट में कैसे आपके सब मस्कुलोस्केलेटल विसरल प्रॉब्लम्स की जड़ है, उसके इम्बैलेंस में, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। तो ये मैं यहाँ पे मैंने जैसे फ्लेक्सी लर्निंग मोड, बहुत सारे लोग अभी दिल्ली वगैरह से ज्वाइन हुए, बट हमारे नासिक में ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं। बट स्टिल इफ यू आर अ हेल्थ प्रैक्टिशनर और आपको फ्लेक्सी लर्निंग मोड में जाना है, तो स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करके भी आप वो जो है कर सकते हो। तो इसमें जो पेमेंट की स्टेप्स है, तो फर्स्ट है 6,000 रुपीज़ का आप पेमेंट अगर करते हो तो आपको थेरी और जो भी कंसेप्ट है अ, ये मैनुअल थेरेपी के, उनके बारे में लेक्चर्स बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। ओके, अराउंड वो 5-6 घंटे के लेक्चर्स रहेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पेमेंट 8,000 का है। इसको हमने अभी 6,000 पे लेके आए हैं, क्योंकि लेवल 1 का है तो। और उसको थोड़ा हमने सस्ता कर दिया है, बिकॉज नॉन मेडिकोज स्टूडेंट से वो एडमिशन लेते हैं। तो एक नेक्स्ट 6,000 का पेमेंट आता है, तो आपको एक्सेस मिल जाता है जो बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, जो डिप्लोमा का पूरा कोर्स है, उन उसके सब वीडियोस जो है उनका एक्सेस आपको मिल जाता है। और फिर आप वो परफॉर्म कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ आती है कि आप हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हो तो डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो डिप्लोमा के लिए, और एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर हो और अगर फ्रेशर हो तो आपको हैंड्स ऑन वर्कशॉप करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, और फिर ही आप एलिजिबल होते हो डिप्लोमा के लिए। ये हो गया लेवल 1, पहले 2 पेमेंट का स्टेप। थर्ड पेमेंट जो है आपका, वो है माय फेशियल रिलीज ISTM, जो लेवल 2 में बोलता हूँ कि जिसमें ऑस्टियोपैथी के कंसेप्ट इन्वॉल्व है। इसमें थोड़ा एनाटॉमी का नॉलेज प्रॉपर होना और टेक्निकल टर्म्स भी मालूम होना जरूरी हो जाता है। वो वैसे हम लेक्चर में वो सब कवर किया है, तो वो आपको देख के आने हैं। देन नेक्स्ट पेमेंट उसी का है इंस्टॉलमेंट 6,000 का, जिसमें आपको विसरल मोबिलाइजेशन के वीडियोस प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। और इससे भी आप सीख के आगे काम कर सकते हो। और जिन्हें हैंड्स ऑन वर्कशॉप के लिए आना है, एट द टाइम ऑफ वर्कशॉप आपको 2 दिन का वर्कशॉप अगर करते हो तो 3,500 रुपये देना होता है। और 3 दिन का अगर करते हो पूरा तो 6,500 रुपये आपको इसमें दे के आप हैंड्स ऑन वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। तो मतलब जो ऑनलाइन के लिए जाएगा टोटली, उनके 6,500 रुपया उनको कम लगेगा इसमें। ओके, और बाकी सब कंटेंट उनको ऑफलाइन ऑनलाइन में मिल जाएगा। और सेकेंड लेवल का उन्हीं को मिलेगा जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर है। फर्स्ट लेवल का फ्रेशर्स को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, बट उनके लिए हैंड्स ऑन वर्कशॉप करना ये जरूरी ही रहेगा। एटलीस्ट फर्स्ट लेवल के लिए 3,500 रुपये दे के, वो कहीं पे भी है उनको हैंड्स ऑन के लिए आना पड़ेगा। हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर ऑलरेडी हो तो चारों स्टेप का पेमेंट करके लेवल 1 लेवल 2 दोनों आप कर सकते हो। ओके, सो ये डिप्लोमा का फी स्ट्रक्चर है। डिप्लोमा जिनको करना है उसके लिए फी स्ट्रक्चर है। तो अ, नासिक इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस के अंडर ये सब डिप्लोमा सर्टिफिकेशन का करिकुलम करिकुलम जो है वो टेक केयर होता है। तो इसमें रिकॉर्डेड थ्योरी लेक्चर है, वीडियोज ऑफ फुल बॉडी स्पाइन अलाइनमेंट है, वीडियोज ऑफ मसल रिलीज डिकम्प्रेशन कपिंग, ISTM का भी हम उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, और फिर आप जब वर्कशॉप के आते हो तो वर्कशॉप हो जाने के बाद हम ISTM के भी वीडियो
डिप्लोमा होल्डर्स को दे रहे हैं अभी, तो उसमें थोड़ा कॉस्टिंग बढ़ जाता है, और वो स्किप करना है किसी को तो वो स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो। देन 7,500 जो है वो एक महीने के बाद जब आपका एडमिशन हो जाता है तब एग्जाम फी वगैरह जो भी चार्जेस है वो पैरामेडिकल कॉलेज को आपको सेपरेटली पे करने होते हैं। और फिर वहाँ से आपको पूरा गाइड किया जाता है, आपके जो भी सेशंस है प्रैक्टिकल या फिर क्वेश्चन पेपर्स एग्जाम्स के लिए क्या कैसे वो सब गाइड किया जाता है। ओके, सो ये अराउंड पूरा करिकुलम एवरी 6 मंथ में उनका एक सेशन होता है बीएसएस का। तो अपकमिंग सेशन जो भी रहेगा उसमें आपका वो करिकुलम कंप्लीट करके आपको डिप्लोमा प्रोवाइड करवाने का हमारा जो है ये प्रयास होता है। तो इसमें टोटल फीस 27,500 आता है। बट इसमें जो है आप अगर मायोफेशियल रिलीज मतलब सॉरी आईएसटीएम और डिकम्प्रेशन कपिंग का अगर आप माइनस करते हो तो आप 6,000 इसमें सेव भी कर लेते हो। तो जैसे आपका बजट है वो हिसाब से आप जो है डिप्लोमा के लिए जा सकते हैं। तो ये स्पेशली जो लोग नए हैं और उनको इसमें एंटर करना है उनके लिए है। तो ये मॉडल के बारे में डिटेल डिस्कशन के लिए ऑलरेडी नंबर्स दिए गए हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हो, वहाँ पे प्रॉपर जानकारी आपको मिलेगी। आपका जो भी अभी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसके हिसाब से आप कैसे आगे जा सकते हो वो तरीके से भी आपको पूरा हेल्प किया जाएगा। तो ये कुछ हमारी सक्सेस स्टोरीज है। ये डॉक्टर भक्ति मैम है बीएनवाई से पुणे से। सो वो अगले 6 महीने के अंदर अंदर ही मतलब तीसरे महीने में ही मैम का रेवेन्यू जो है वो 1 लाख रुपीज तक चला गया था। और मैम ने रिव्यू भी शेयर किया है यूट्यूब पे, आप वो भी दे सकते हो, समय रहता है तो हम वो भी प्ले करेंगे, मेरे पिछले वेबिनार में भी मैंने दिखाया है। देन वेदांत सर है मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे एंड ही इज अर्निंग मोर देन 3 लाख रुपीज अ मंथ। देन विवेक संगपाल सर है, ये जिम ओनर है, जिम ट्रेनर है। और सर का जो है अभी एक सिटिंग जो आईएसटीएम का होता है उसका 5,000 चार्ज करते हैं सर। और इतना अच्छा रिजल्ट उनको आ रहा है कि आजू बाजू के 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में से भी लोग आ रहे हैं, और कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट से भी लोग उनके पास जो है अच्छे अच्छे ट्रेनर या बिल्डर जो है वो उनके पास आते हैं और सेटिंग करके जाते हैं। तो उनके जो स्पोर्ट्स इंजरी है या फिर बॉडी टोनिंग है ये सबको सर बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं। देन विकास गुरु सर पंढरपुर में काम करते हैं, सर का भी अभी बहुत बड़ा सेंटर सर ने वहाँ पे स्टार्ट किया है, हेल्थ कैंप भी स्टार्ट किए हैं और फ्रेंचाइजी ओनर भी है सर हमारे। देन चंदन राणे सर जलगांव में बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्होंने भी 25,000 उनका एक पैकेज रहता है, जो कस्टमर्स मुंबई से भी जलगांव जाके उनसे वो पैकेज ले रहे हैं। और जलगांव भी नहीं, जलगांव से और 40 किलोमीटर भुसावल है, वहाँ पे सर प्रैक्टिस करते, बट दूसरे एमपी से भी लोग उनके पास आते हैं। देन प्रशांत सर का एक टेस्टिमोनियल बहुत बढ़िया है, नॉन मेडिको पर्सन था, सीखना था, मसाज थेरेपी करते थे। उनके मदर को जो है प्रॉब्लम था, हाथ में सीवियर पेन रहता था, रो पड़ती थी वो, तो उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। बाकी सब दिखा चुके, खुद भी कर चुके, उन्होंने डिसाइड किया कि मैं सीखूंगा। और फिर बहुत 10-12 कॉल में पूरा काउंसलिंग होने के बाद 2-4 सेमिनार अटेंड करने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड किया और पूरा कोर्स करने का उन्होंने ठान लिया। फिर पूरे 20 आवर्स के लेक्चर्स प्रॉपर गो थ्रू किए, क्वेश्चन पूछते थे, वर्कशॉप के लिए आए। 3 दिन का वर्कशॉप करने के बाद चौथे ही दिन जब जाके रूट कॉज पे काम किया, 7 साल से जो हाथ पेन में था 90% रिलीफ पहले ही सिटिंग में आया। मम्मी का हाथ भी पूरा ऊपर जाने लगा, फोन किया, फोन पे बात हुआ, मम्मी भी रो पड़ी, वो भी रो पड़े। और फिर उसके बाद जो उनका चालू हुआ प्रैक्टिस, तो उनके सांगली के पास छोटा गांव है उसमें ही उन्होंने सिंगल मंथ में 170 पेशेंट कर लिए। ओके, बट बंदा है ना, इतना फॉलोअप लेता है, कुछ भी उसको लगता है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है वो नहीं करता है, वो पूछे बगैर नहीं करता है वो। हम आपको ये भी बता देते हैं कि कोई पेशेंट आता है आपको डायग्नोज नहीं हो रहा है, क्या करना है, तो वो टाइम पे जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे हाथ नहीं लगाना है। लेकिन बाकी चीज़ें हम कैसे उसको जो है एक पेन रिलीफ कर सकते हैं या फिर क्या उसको दे सकते हैं जिससे फर्स्ट सिटिंग हो जाएगा, उसको ये नहीं लगेगा कि आपको नॉलेज नहीं है। फिर सेकेंड सिटिंग के लिए आप 3 दिन 4 दिन में उसको बुला लो, फिर उस दौरान आप मेंटर से बात कर लो, प्रोटोकॉल डिसाइड कर लो, और फिर ही आप उसको हाथ लगाओ या फिर उसको ना बोल दो। तो ये तरीके से हमें काम करना है। तो ये सब चीज़ों पे बिजनेस कैसे करना है, काउंसलिंग कैसे करना है, प्रमोशन कैसे करना है, 1 रुपया खर्चा न करते हुए भी सिटी में आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे चलता है, ये सब हमको आपको गाइड करेंगे। और आप एक अच्छे हीलर हो जाते हो, आपका एक प्रॉपर डेटाबेस आपके पास पेशेंट का हो जाता है,
तो आपके एरिया में जो कॉरपोरेट्स है उनको टारगेट करने के लिए या फिर आपके एरिया में कैंप्स कंडक्ट करने के लिए डिवाइन टच भी वहाँ पे कैंप्स लगाता है। ओके, तो डिवाइन टच का अगर टीम आता है 200 पेशेंट तो आप एक दिन में नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिवाइन टच का टीम आता है वो अगर 200 पेशेंट एक दिन में करके जाता है वहाँ पे, तो ये सब लोग फॉलोअप के लिए कहाँ पे आएंगे, अल्टीमेटली आपके पेशेंट पे आए, सेंटर पे ही आएंगे। तो वहाँ से आपका जो है वो ग्रिप पकड़ लेता है सेंटर। तो हम ये लेवल पे भी सपोर्ट करते, मतलब नासिक से 1200 किलोमीटर दूर तक भी हम ट्रैवल करके आए थे, मैं और वेदांत सर गए थे। और हमने एमपी में सीधी में कैंप करके वहाँ पे हमने लगभग 200 पेशेंट को ट्रीट करके हम 2 दिन में वापस भी आ गए थे। तो ये लेवल का सपोर्ट भी हमारे एक एक हीलर को खड़ा करने के लिए डिवाइन टच देता है। ओके, सो बहुत सारे वर्कशॉप हुए, मोर देन 500 स्टूडेंट्स का काउंट जो है आज डिवाइन टच का हो चुका है। और ये काम बहुत बढ़िया चल रहा है। आज 500 में से लगभग 20 हीलर्स में मेरे काउंट पे है कि जिन्हें मैं कभी भी बुलाऊं तो आएंगे, और मेरा उन पे पूरा विश्वास है कि वो सही से ही काम करेंगे, पेशेंट तो बिगाड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही हमें धीरे धीरे 5,000 की मैजिक फिगर को जो है टच करना है, और जब हम सब मिलके ये काम करेंगे तब बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुका रहेगा। ओके, सो आपको क्या करना है कि 2,000 रुपीज़ पे करके आपका रजिस्ट्रेशन करना है ये वर्कशॉप के लिए। तो आइधर आप वर्कशॉप के लिए आ सकते हैं, या फिर आप हमारे फ्लेक्सी लर्निंग मोड प्लेटफॉर्म के लिए भी रजिस्टर कर सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं अभी। वर्कशॉप के लिए, वर्कशॉप क्या है, कैसे है, कब स्टार्ट हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी मैं देता हूँ। तो ये कुछ स्लाइड से ही हम स्किप करते हैं। दिस इज़ आवर टीम ऑफ डिवाइन टच हीलिंग सेंटर। हमारे कुछ कैंप्स भी चलते हैं, अलग अलग सिटीज़ में हम कैंप लेते हैं, कायरोप्रैक्टिक के भी, बोन सेटिंग के भी कैंप लेते हैं। सो बिकॉज वी हैव अ ऑस्टियोपैथ सो वी कैन राइट अ कायरोप्रैक्टिक। तो देन ये मोडालिटीज़ है, ये कुछ हमारे कॉरपोरेट कैंप्स हुए हैं, थाईसंकर ऑफ महिंद्रा में, क्रॉम्पटन ग्रूज में, उसके ये ग्लिम्सेस है। ये कुछ मेरे इंटरव्यूज़ है। हाँ, और ये बॉडी काइनेटिक चेन जो मैं बोल रहा था, तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि आप जब देखेंगे तो ये बैलेंस एंड इम्बैलेंस पोस्चर आपको जो दिख रहा है, तो ये कैसे क्रिएट होता है, कैसे ये आपके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करता है, और आपके विसरल प्रॉब्लम्स भी इससे ही कैसे अराइज होते हैं, तो उसके ऊपर भी हम थोड़ा ध्यान देंगे। अभी ये वीडियो है Having वो भी चलाएंगे, तो अभी पहले हम वर्कशॉप के बारे में जान लेते हैं। ये माय ऑफिशियल रिलीज जो मैं आपको बोला था, ये विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप है, उसका भी मैंने वीडियो रखा है आपके लिए, वो भी हम देखेंगे। तो ये 3 दिन का वर्कशॉप होता है। पहले जो है बोन सेटिंग एंड ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन है, देन वो 1.5 दिन चलता है। देन नेक्स्ट 1.5 दिन जो है आईएसटीएम मायोफेशियल डिकम्प्रेशन एंड विसरल मोबिलाइजेशन चलता है। तो इसका जो फीस है वो आप वो यहाँ पे देख पाएंगे, जो आप पेमेंट आप करते थे स्टेप बाय स्टेप, तो उसी को यहाँ पे कंबाइन किया है। तो फर्स्ट कोर्स जो हमारा है लेवल 1 का, वो है डे 1 एंड डे 2, टोटल 16 आवर्स का हैंड्स ऑन वर्कशॉप है विथ 10 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर। और आप जो वर्कशॉप अटेंड करते हो उसका भी पूरा रिकॉर्डिंग होता है, और वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो घर पे जाके आप उसका रेफरेंस लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। सो ये डे 1 मॉर्निंग में 9:30 बजे स्टार्ट करते हैं, तो डे 2 दोपहर में 2:30 बजे तक ये चलता है। देन वहीं पे आपका लंच रहता है। लंच के बाद 3 बजे से ही दूसरे दिन हम आईएसटीएम एंड ऑस्टियोपैथी का पैथिक साइंस का जो लेवल 2 का कोर्स है वो हम स्टार्ट कर देते हैं। देन उसमें डे 2 में 6 आवर्स कवर करते हैं, और डे 3 में मॉर्निंग से वापस 9:30 बजे से लेके नेक्स्ट 6 आवर तक हम ये पूरा करिकुलम कर लेते हैं। तो ये 2 कोर्सेस है, आप जिसमें एलिजिबल होते हो, आपको जो करना है आप किसी एक के लिए भी ऑप्ट कर सकते हो, या दोनों के लिए भी आप आ सकते हो। अगर आप दोनों के लिए रजिस्टर करते हैं तो आपको 1,500 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाता है। सो 16,500 एंड 15,000, 31,500 होता है। ये टोटल 30,000 में हो जाता है। और उसके साथ आपको कुछ बोनसेस भी मिलते हैं, लगभग आपको 12,000 रुपये के कुछ बोनसेस भी मिलते हैं जब आप दोनों वर्कशॉप हमारे कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे आपने फर्स्ट तो कर लिया, और कभी नेक्स्ट टाइम आके भी आपने अगर दूसरा वर्कशॉप करते हो, तो नॉट 12,000 बट एटलीस्ट 5-6 हज़ार के बोनस तो आप उसमें भी कमा ही लेते हो। तो हम वो भी देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो वर्कशॉप है, यहाँ पे आप डेट नीचे देख पा रहे हो, 6, 7 और 8 जून को है, 6, 7, 8 जून को हमारा वर्कशॉप है।
फ्राइडे सैटरडे संडे है। और इसमें जो है बोन सेटिंग, बॉडी अलाइनमेंट, ऑस्टियोपैथिक आर्टिकुलेशन, मायोफेशियल रिलीज, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, फंक्शनल कपिंग, स्पोर्ट्स कपिंग भी हम बोल सकते हैं, विसरल मैनिपुलेशन, और लीवर क्लींजिंग थेरेपी जो है वो भी मैं सब पार्टिसिपेंट्स के लिए मेरे ओर से फ्री रहेगी, जिसके मैं 5,000 चार्ज करता हूँ। मैं आपका वो भी करवा लूँगा, जिससे आपको पता चलेगा कि बहुत सारे बैक पेन में जो कॉज है वो कॉन्स्टिपेशन के वजह से होता है, और जब वो क्लियर हो जाता है तब आप क्या फील करेंगे, तो आपको पता चलेगा पेशेंट पेशेंट क्या फील करेगा। तो कौन से केस में आपको पहले क्लीनिंग करवाना है या फिर कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम करना है, ना कि सिम्टम के ऊपर, ये भी समझना ज़रूरी हो जाता है। तो ये सर्टिफिकेट का जो है डेमोन्स्ट्रेशन है, ये है हमारा लेवल 1 का सर्टिफिकेशन। ओके, सो इसमें जो पूरा प्रैक्टिकल करिकुलम डिप्लोमा में होता है फॉर द ईयर, वो पूरा कवर किया जाता है, उसका सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। ये है आपका लेवल 2 का MFR ISTM एंड विसरल मैनिपुलेशन का सर्टिफिकेशन। सक्सेस स्टोरीज तो हो गई, ये कुछ पेशेंट के स्टोरीज है, कुछ सेलिब्रिटीज भी मराठी फिल्म इंडस्ट्री से हमारे पास आते हैं, उनकी भी सक्सेस स्टोरीज है। तो नेक्स्ट वर्कशॉप जो है 6, 7 और 8 जून को हमारा नासिक में है। मैनुअल थेरेपी का वर्कशॉप रहेगा, हैंड्स ऑन वर्कशॉप रहेगा। ओके, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना है। कुछ पेशेंट के टेस्टिमोनियल है और स्टूडेंट्स के भी टेस्टिमोनियल है, वो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हो। जैसे अभी ये मैम है, ये खुद एक BMS डॉक्टर है, पूना से आई थी। मैम भी, उनको भी लगता था कि मैंने तो सब कर लिया है और मुझे नया सीखने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रिव्यू मैम ने दिया। और वैसे ही नागराजा सर हैदराबाद से आए थे, बहुत ही एक्सपीरियंस बोन सेटर ये है। मैनुअल थेरेपी में फॉरेन से जाके उन्होंने कोर्सेज की है, बट ही सेड कि 60% अपग्रेड मेरे लाइफ में मुझे 3 दिन का ये कैंप करने के बाद मिला है। तो लोग आते हैं दूर दूर से, अटेंड भी करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, अगर आपको हमारे 6, 7, 8 जून के वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करना है, तो आप अभी जो मैंने 2,000 बोला था, उसको मैंने अभी 999 कर दिया है। कि आप 999 रुपीज़ जो है अगर वेबिनार में पे करते हो, तो आपको फ़ायदा क्या होगा। आपको 1,999 रुपीज़ अभी पे करने हैं, कौन से नंबर पे, ये दिए गए नंबर पे, जिससे कल आपका कॉल डायरेक्टली मेरे साथ शेड्यूल किया जाएगा। 1 to 1 पर्सनली हम डिस्कस करेंगे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ऑनलाइन के लिए जाना है कि ऑफलाइन के लिए जाना है, और आपके क्या गोल सेट्स है। और जब वो पूरा डिस्कशन हो जाएगा तब हम डिसाइड कर लेंगे हाउ टू स्टार्ट। आइदर यू कैन कम फॉर द ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो ऑफलाइन के लिए आना है तो मैं 2,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी लेता हूँ वर्कशॉप के लिए, बट और ऑनलाइन के लिए मैं 999 का लेता हूँ। तो अभी मैंने क्या किया है कि आप 999 अभी पे कर दो वेबिनार में इस नंबर पे। कल हम बात कर लेंगे, फिर आप आपका शेड्यूल देखो, आप कहाँ से आ रहे हो, कैसे आ रहे हो, आपको मिल रहा है क्या समय में। अगर आप ये वर्कशॉप के लिए आ रहे हो वो हिसाब से जाएंगे, अदरवाइज हम ऑनलाइन के लिए जाएंगे। जो भी 1 महीना 1.5 महीना है आप उससे आपका स्टार्ट कर दो, जो भी प्रैक्टिस है जिसमें आप बैठते हो वो पूरा करिकुलम ले लो। और जब आपको सुटेबल होता है किसी भी वर्कशॉप में आके रिमेनिंग पेमेंट करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। तो जिन्हें भी ज्वाइन करना है उनको 999 पे करना है। 999 जो पे करेंगे उनको 1,500 का डिस्काउंट मेरे ओर से ऑलरेडी दोनों वर्कशॉप के लिए मैं दे ही रहा हूँ। प्लस उनको क्या मिलेगा, जो पेमेंट करेंगे उन्हें ये फंक्शनल कपिंग का कोर्स जो है इमीडिएट, आपका फर्स्ट स्टेप का भी पेमेंट मेरे पास अगर आता है तो आपको ये कोर्स फ्री में दे रहा हूँ मैं। जिसका नॉर्मली प्राइस जो है अदर देन डिवाइन टेस्ट स्टूडेंट्स 12,500 है, हमारे स्टूडेंट्स के लिए 6,500 हमने रखा था जब ये कोर्स लॉन्च किया था। और अभी आप अगर वेबिनार में रजिस्टर करते हो, 999 रुपीज़ पे करते हो, और आपकी मेरे मुझसे बात हो जाती है, आपका जैसे ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 का है तो 999 तो दे दिया है, 5,000 जैसे ही आ जाता है आपको वो कोर्सेज के वीडियोस तो मिलेंगे ही, प्लस आपको ये कोर्स का भी एक्सेस फ्री में मिलेगा। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वेबिनार में रजिस्ट्रेशन करेंगे। बाकी 30,000 रुपीज़ जो भी बंदा पे करता है उसको तो ये हम देते ही है, लेकिन सिर्फ लेवल 1 कर रहे या फिर रिकॉर्डेड में जा रहे हो, तो जो वेबिनार में 999 रुपीज़ पे करके रजिस्टर करेंगे उनको ये कोर्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको मिल रहा है। तो ये आपके लिए बोनस रहेगा। जिनके भी आज पेमेंट आएंगे, आज स्क्रीनशॉट आएंगे, स्ट्रिक्टली उनको ही ये शेयर किया जाएगा। अदरवाइज फिर जब आप पूरे कोर्स का
पेमेंट आपका हो जाएगा, वर्कशॉप्स आप कर लेंगे, तभी आपको ये कोर्स एज अ बोनस मिलेगा। तो आप डिसाइड करो आपको 999 में चाहिए कि 30,000 में चाहिए। ओके, सो ये डिसीजन लेना ज़रूरी है। तो अगेन हम वर्कशॉप पे आते हैं। सो ये दो तरीके के जो है कोर्सेस है। फर्स्ट है 16,500 बोन सेटिंग वर्कशॉप एंड डिप्लोमा। डिप्लोमा की जो भी प्रोसीजर है वर्कशॉप कंप्लीशन के 1 महीने बाद जो है आप कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं। कोलेबोरेशन में वो सब चीज़ें कंडक्ट की जाएगी। देन माई फेशियल रिलीज, ISTM एंड विसरल मैनिपुलेशन का वर्कशॉप रहेगा। ओके, तो अभी हम आते हैं हमारे डेट नोट कर लेना है। 6, 7 और 8 जून को हमारा हैंड्स ऑन वर्कशॉप है। ऑलरेडी एक वर्कशॉप में हम 20 लोगों से ज़्यादा नहीं लेते हैं। अभी अराउंड कुछ 10 एक सीट जो है वो वैकेंट है, और आप रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी करेंगे बैच कंप्लीट हो जाएगी, अदरवाइज वी विल पुट यू इन द नेक्स्ट बैच। ओके, सो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करो। 999 रुपीज़ इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लो। इसके ऊपर आपको पेमेंट करना है, ये नंबर के ऊपर। इसी के ऊपर आपको जो है, आप डिवाइन टच या आशीष सूर्यवंशी नाम से ये सेव कर लो। इस पे आपको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप जब करेंगे तो आपको कन्फर्मेशन आएगा और आपसे टाइम पूछा जाएगा, और आपके टाइम में या फिर मेरे टाइम में शेड्यूल बैठता है तो एक 30 मिनट का कॉल आपका और मेरा 1 to 1 कॉल जो है वो शेड्यूल किया जाएगा। और उसमें अगर टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी ज़रूरत लगती है तो उनको भी वहाँ पे जो है आपसे कनेक्ट करवा दिया जाएगा। ओके, देन ये वर्ल्ड स्किल काउंसिल के सर्टिफिकेशंस जो मैंने आपको बताए। अभी विसरल मैनिपुलेशन जो है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सो वी हैव विसरल मैनिपुलेशन के लिए हमने क्या किया, हमने जो बेस्ट विसरल मैनिपुलेशन के एक्सपर्ट है उनको हमने इनवाइट किया था, और उन्होंने आके जो है यहाँ पे विसरल मैनिपुलेशन का कोर्स कंडक्ट किया था। और फिर वहाँ से हमने जो है, मतलब वहाँ पे कॉस्टिंग लगभग एक कोर्स की ही 35,000 एक बंदे की थी, और आज उसी को हमने आपके लिए डिज़ाइन करके सिर्फ 15,000 के कोर्स में MFR, विसरल मैनिपुलेशन और ISTM, ये तीनों हम आपके लिए लेके आए हैं। ओके, ये बोन सेटिंग का वर्कशॉप है। हाँ, अभी आते हैं इसके ऊपर। Having hyperlordosis in your lumbar spine directly points to the idea of a lower cross syndrome. Basically, your pelvis can be viewed as a rotating object controlled by 4 strings. The tension in one pair of strings can change the position of the pelvis, which, in turn, affects the tension in the other pair of strings. When you're sitting, your hip flexors become accustomed to a shortened position, while your gluteal muscles adapt to a lengthened one. When you stand up, this shift in tension introduces uneven forces on your pelvis, resulting in its rotation. This rotation pre-shortens your lumbar extensors, increasing their excitability, and pre-lengthens your abdominal muscles, making them more lazy. यस, तो इसमें से क्या समझ में आया आपको? हमारी जो लाइफस्टाइल है, या फिर जो हमारा सिटिंग पोस्चर है या फिर वर्किंग पोस्चर है, उसमें कैसे कोई मसल कंप्रेशन में आते हैं, कैसे कोई वीक हो जाते हैं, और जिससे जो है एनाटॉमी चेंज हो जाता है। और जब एनाटॉमी चेंज होता है तो वो पूरा आपके ओवरऑल बॉडी पे कैसे अफेक्ट करता है, ओवरऑल सभी सिस्टम्स पे कैसे अफेक्ट करता है, वो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये सब अप्रोच जो है ना हम आपका यहाँ पे डेवलप करते हैं। और ये यहाँ पे अगर आप इमेज देख पा रहे हो तो ये बैलेंस और इम्बैलेंस स्ट्रक्चर है। तो इम्बैलेंस पोस्चर में देखो, ये बंदे का एंकल रोटेटेड है, मोस्ट प्रोबेबली अगर फ्लैट फीट है तो ये रोटेट हो गया है। फिर उसके वजह से क्या होता है, नी रोटेट हो गया। अभी क्या हो गया कि ये जो साइड है लेफ्ट साइड उस पर लोड ज़्यादा आने लगा, ये पेल्विक टिल्ट हो गया। अभी ये पेल्विक टिल्ट होने के बाद एक्चुअल एंगल तो ये हो रहा है क्रॉस, बट नेक शुड बी स्ट्रेट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए स्पाइन कर हो गया, और स्पाइन जब कर हो गया तो ये एंगल ये होना चाहिए ना, लेकिन वो नहीं है, नेक सीधा चाहिए। तो इसमें सर्वाइकल भी आपका स्ट्रेटनिंग हो गया। तो नेक पेन अगर ये पेशेंट को है तो समझना है इसका क्रॉनिक हिस्ट्री है कि कहीं पे तो इसके फुट में इम्बैलेंस हो गया, जिसके वजह से आज इसका ये नेक पेन रेडिएट हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है। अभी इसमें क्या होगा, पेल्विक डिसफंक्शन अगर हो गया है तो पेल्विक के ऊपर क्या क्या इंटरनल बॉडी ऑर्गन रेस्ट है, वो भी तो उनका भी तो एंगल चेंज हो रहा है ना। बराबर, यहाँ पे आप देखेंगे ये बंदे का, तो ये इसका राइट साइड में कंप्रेशन देखो, पेल्विक ऊपर आया है और ये रिब्स नीचे आया है, तो ये स्पेस कम हो गया।
ये स्पेस में लीवर है इसका, तो इसका लीवर प्रॉपर फंक्शन करेगा, वो तो मूवमेंट करता है। शोल्डर अगर राउंडेड हो गए हैं तो डायफ्राम कंप्रेशन में आया है, उसका ब्रीदिंग प्रॉपर होगा, तो ब्रीदिंग का परसेंटेज भी उसका कम हो जाएगा। तो अगर आप 10-20% ही ब्रीदिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी मसल सब वीक होने लगेंगे, धीरे धीरे और बॉडी कोलैप्स होने लगेगी। तो रूट कॉज पे काम करना मतलब क्या करना है, तो टोटल रिजुविनेशन देना भी है और टोटल बॉडी पे ही काम करना है आपको। ओके, बट स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि शोल्डर पेन का पेशेंट है और जैसे वो शोल्डर का मैंने मैनिपुलेशन का अभी मैंने वीडियो देखा, तो शोल्डर को ऐसे जोर जोर से पीछे आगे पीछे ऐसे झटका दे रहे, तो जैसे वो रिक्शा का रिक्शा स्टार्ट करने के लिए रॉड कैसे खींचता है, तो वो तरीके से वो पैर को भी खींच रहे या फिर हाथ को भी वो तरीके से झटका दे रहे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है। ओके, अभी एक परसों पेशेंट आया था, नीरज सर भी थे, मैंने एड्रेस किया था, सर को हैंड ओवर किया, तो वो मैम को सीवियर शोल्डर का पेन था, शोल्डर ऊपर नहीं उठता था और हिस्ट्री में उनका सीजरियन आया, तो 2 सीजर मैम के हुए थे। तो वो सीजर के वजह से जो एनाटॉमी वहाँ पे डिस्टर्ब हो गई थी या फिर स्टिचेस के वजह से जो एनाटॉमी स्ट्रेच हो गई थी, तो जैसे सीजर अगर है और अगर मैं ये शर्ट को खींचता हूँ एक बाजू में तो क्या हो जाएगा, ये रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके, फिर मैं नीचे अगर रिलीज करता हूँ तो ये ऊपर हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, नीरज सर और अच्छे से आपको समझाएंगे या फिर हम जब सामने रहेंगे तब समझेंगे, यहाँ पे एक टाइम कंस्ट्रेंट भी होता है। तो ये चीज़ के ऊपर जो है ना, ये भी हम डिस्कशन जो है ट्रेनिंग में डिटेल में करेंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि होलिस्टिक अप्रोच आपको देखना जरूरी है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या है, उसका फूड हैबिट्स क्या है, वो तरीके से उसको क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या उसका रूट कॉज हो सकता है, पोस्चर देख के ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके फिर जाके आपको एग्जैक्ट जड़ तक आप पहुंचते हो। तो ये बहुत अमेजिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा, वर्कशॉप में भी मज़ा आएगा और आप एंजॉय करेंगे। तो आपके कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आप चैट में डाल सकते हैं। और तब तक हम कुछ रिव्यूज जो है वो देख लेते हैं पेशेंट के। जो भी आपके क्वेश्चन है चैट में डालो, नीरज सर ऑनलाइन आ रहे हैं, वो एड्रेस करेंगे। Yes, ma'am, definitely. You can start your ये भक्ति में Without any second thought, you can say it's a blindfolded eyes. You can go for this course. And really, I have accept these courses. I have also tried for the other courses. So after you, after बाद, and really, there no one teaches like Ashish sir and their team. Without any second thought, really go, and it is really beneficial. You won't believe. Course करने के बाद within a month we started our clinic. Within a month, 2 months we started our clinic, and per month we are earning a 1 lakh. Great. Per month we are earning 1 lakh. It's directly cash, and patients are so satisfied. Right now, just Rupesh sir said it. In within you can say in 3-4 months the patients are getting really satisfied. Those who are having a problem since 8 years, 10 years, you can say even 24 years pain, 14 years pain are they getting it really. Right now the patients are calling. We are not waiting for the patients. Patients are calling us and they are booking an appointment, sir. And it's so you आपने हमारे हाथ में just you can say magic दे दिया. मतलब जिन लोगों को ऐसे फील होता है ना कि अरे वी आर नॉट वैलिड, हम कैसे इस कोर्स को करें। सो जो कोर्स हमें बाहर जाके करना जरूरी है, वो हमें अगर इंडिया में मिल रहा है, पूना में मिल रहा है और स्पेसिफिकली डिवाइन से मिल रहा है, तो प्लीज इसे कीजिए. मेक एंश्योर दैट यू डू दिस कोर्स. आई एम आल्सो कमिंग सर. Yes, ma'am. Thank you for great review. You have did my job very easy. ओके, सो कोई क्वेश्चन है आप डाल सकते हैं। एक और रिव्यू हम देख लेंगे।
ये यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे आप तो जो है कैसा लगा आपको देख पेन? सकते हो। प्लेलिस्ट का 3 days लिंक का भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। वो काफी नॉलेजेबल था। 3 days काफी 9 to 7 8 टाइम तो 9 भी बज गए थे हमें, बट इट वाज वेरी गुड। लर्निंग काफी अच्छे थे, डॉक्टर्स काफी नॉलेजेबल थे जो ट्रेनर्स थे। सो इट वाज अ गुड सेशन। तो पहले आपने ऑनलाइन ऐड देखा था, यस। तो आपको कुछ डाउट रहेंगे कि आपके डाउट थे, जैसे मैं आऊंगी तो मुझे वही तो नहीं सीखने मिलेगा जब मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, जैसे आप फिजियोथेरेपिस्ट हो, तो उसमें आपको क्या अपग्रेडेशन मिला? और जो भी यहाँ सिखाया है ये हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो भी सिखाया है यहाँ मतलब ऑनलाइन वगैरह कहीं देखा ही नहीं था। बहुत ही डिफरेंट टेक्निक्स था, बहुत ही डिफरेंट नॉलेज था, बहुत ऐसी चीजें बताई गई है जो हमें भी मतलब जानकर ऐसा लगा ये ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए। बहुत लोग को नॉलेज नहीं है जो बारे में वो यहाँ पे सीखने मिलता है। रूट कॉज के बारे में जो सर ने, जैसे अभी आपने विसरल मैनिपुलेशन और मायोफेशियल रिलीज का सेशन स्टार्ट हुआ, तो जो एस्पेक्ट आपके सामने आए, तो जो चीज हम बोलते हैं कि हम रूट कॉज को ट्रीट करने के लिए सिखाते हैं, ना कि सिम्टम को, तो उसमें कुछ एक आप ऐसा आपको एक कोई एग्जांपल कि जो आपको लगा हो कि अरे पेन तो यहाँ पे है लेकिन रूट कॉज हुआ। वन वाज सर्वाइकल पेन। उसके बाद हमने प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन कर एक्सरसाइज किया। उसके बाद तुरंत ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन को सर्वाइकल पेन रहता है। सो आप फेशिया रिलीज करिए डॉर्सिफ्लेक्शन और प्लांटर फ्लेक्शन से, उससे ही इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। सो ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है। हमेशा लोग क्या करते हैं, जहाँ पेन है वहीं पे कुछ ना कुछ अप्लाई करते हैं, प्रेशर डालते हैं, बट ऐसा नहीं। या कायरोप्रैक्टिक के नाम पे वो गर्दन को मरोड़ते हैं, तो जहाँ पेन है उसका रूट कॉज हमेशा उससे दूर रहेगा, ये यहाँ सिखाएगा। यहाँ पे जो भी सिखाएगा इंस्टेंट हमने वो करके भी देखा है, क्योंकि जितने भी लोग आए थे किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था ही, सबका कुछ ना कुछ था। तो उसी टाइम ट्रीट किया, उसी टाइम टेस्ट किए, तो पता भी चला यस दिस इज करेक्ट। यस। और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस भी बताए कि पोस्चर में क्या प्रॉब्लम है हमारे। So, आप हर किसी का सबके पोस्चर डिफॉर्मिटीज था। हाँ। किसी का पेल्विक टिल्ट, किसी का पूरा पोस्चर टिल्ट, किसी का नेक थोड़ा बेंड था, किसी का लेग इन्वर्जन में था, तो सबका कुछ ना कुछ था। तो फुट पोस्चर के बारे में जो आपको Correct. बताया, जो आप हाई हील्स यूज करते हैं, या फिर Right. एक मैडम के हमने देखे तो बहुत ही इन्वर्टेड थंब थे, हम उनका पूरा बोन धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हाँ। तो ये हाई हील्स पहनने की वजह से कितना डैमेज हो रहा है बॉडी को, ये लोगों को नहीं पता। सो अब हमारा फीट ग्राउंडेड होना, जितना ग्राउंडेड रहेगा उतना आपका बॉडी पोस्चर अच्छा होगा। तो ये भी सिखाया गया, विच इज वेरी गुड। लोगों को ये सब पता नहीं है। जी मैम, अभी प्रैक्टिस कीजिए। Yes. और जैसे आपके 100-200 पेशेंट हो जाएंगे तो हम और एडवांस कंसेप्ट भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस ट्रेनिंग। थैंक यू मैम। गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. तुम्ही मुंबईहून इथं 3 दिवस ट्रेडिशनल इंडियन बोन सेटिंग, ISM आणि विसरल मोबिलायझेशन क्वेश्चन है ना चैट में डालो आप। तर 3 दिवसाचा तुमचा अनुभव कसा होता? म्हणजे आता आपण सांगायचं म्हटलं तर जवळपास 25 वर्षापासून ये रिव्यू के बाद इंडस्ट्रीमध्ये नीरज सर ऑनलाइन आ जाएंगे। भेटणार आहे मुंबईला. पण असं कुठं ना कुठं मला भासत होतं की मला अजून काहीतरी शिकायचं होतं. तर मला ऑनलाईन एकाने मला एक लिंक पाठवली, डिवाइन टच लिंक, आणि मला असं वाटलं की आता हे शिकलं पाहिजे तिथे. आणि इथं आल्यानंतर मला एकदम वेगळाच अनुभव मला मिळाला. आणि थँक्स टू इथला जो स्टाफ आहे आणि जे फॅकल्टीज आहेत ते खूप चांगले होते. तुम्हाला काय आता तुमचे काय कन्सेप्ट क्लिअर झाले? तुम्ही 25 वर्षापासून फिटनेस इंडस्ट्रीमध्ये होता. हो. तर आता आज 3 दिवसात तुम्ही जे आले तर तुमचे काहीतरी कन्सेप्ट असे क्लिअर झाले असतील का? 25 वर्षापासून मी जे करत होतो आणि आता इथून पुढे जे मी करल ह्याच्याने मी माझे जे क्लायंट्स असतील, ट्रेनिंगचे क्लायंट्स असतील किंवा फिटनेस रिलेटेड काही क्लायंट्स असतील, तर त्यांना मी आता किती अजून सायंटिफिकली आणि योग्य प्रकारे त्यांचं मी रिहॅब करू शकतो. हो, करेक्ट. हो. तर जे 3 दिवसात इथे शिकलोय, आता ते मी इम्प्लिमेंट करणार मी माझ्या क्लायंटला, आणि डेफिनेटली मला तो रिझल्ट मिळणार. आणि मला खात्री आहे की मला अजून चांगले आणि खूप पैसे कमवू. आणि एक गोष्ट आपण नेहमी लक्षात ठेवली पाहिजे की कोणतीही गोष्ट इलॉजिकल केल्याने प्रॉब्लेम वाढतात. हो. तर आपण जी गोष्ट करतोय त्याचं जर रूट कॉज आयडेंटिफिकेशन केलं, सिम्पटमला न बघता रूट कॉजला जर आपण कॉन्सन्ट्रेट केलं तर खूप जास्त प्रकारे आपण रिझल्ट डिलिव्हर करू शकतो, जे लॉंग लास्टिंग असू शकतात. तर तेच इथं शिकायला मिळालं, ते रूट कॉज बद्दल फोकस करायचंय. पहिले म्हणजे असं वरच्यावर चालायचं, पण आता इथं एकदम प्रॉपरली एकदम. तुम्ही 3 दिवस हॅपी आहे म्हणजे तुम्ही जी फी भरली किंवा ज्या फीच्या रिटर्न मध्ये तुम्हाला नॉलेज मिळालं
ते तुम्हाला असं वाटतं की ते फुलफिल्ड आहे, वर्थ आहे? मला असं वाटतं की तुम्ही जे इथं फीस घेतली फार कमी आहे, कारण तुम्ही एवढं कमी फीस मध्ये तुम्ही इथं अकोमोडेशन बी देताय, खायला सगळं देताय. मला असं वाटतं की तुम्ही फीस वाढवली पाहिजे. तर ह्याच्यात आपला कमर्शियल ऍस्पेक्ट नाहीच आहे की पैसे कमावणं हेतू नाही, ते आपल्याला हिलिंग डिलिव्हर करायची आहे. लोक पेन फ्री झाले पाहिजे, त्या व्ह्यूनी आपण ट्रेनिंग ऑर्गनाईज करतो. ही चांगली गोष्ट आहे. थँक्यू सर. आणि विल बी इन टच, विल बी कनेक्टेड. पुढच्या Yes. पुन्हा येतोय. येस सर, थँक्यू सर. यस, तो सर जो है वो एक बहुत बड़े बॉलीवुड एक्ट्रेस के पर्सनल फिटनेस कोच है और वो सीखने के लिए आए थे डिवाइन टच में. ठीक है. यस, तो ये अपकमिंग जो वर्कशॉप है हमारा 6, 7 और 8 जून को है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो. और इसमें अगर आपको ऑनलाइन में जाना है तो ये आपके पेमेंट के स्टेप्स है. ये इमेज में ग्रुप पे शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे, तो आपको इससे रेफरेंस मिलेगा. और जो लोग अभी आज वर्कशॉप में रजिस्टर करेंगे उनको वो फंक्शनल कपिंग का कोर्स पूरा इमीडिएट एक्सेस मिल जाएगा. और मैं आपको बोलता हूँ 5000 देने की भी ज़रूरत नहीं है, 999 भी आप पे करते हो, आपको इमीडिएट एक्सेस फंक्शनल कपिंग के कोर्स का जो है मैं आपको दे दूंगा. तो ये मेरे ओर से और एक रिवॉर्ड आपके लिए रहेगा. तो जो भी पेमेंट कर रहे हैं उसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज दो. आफ्टर वर्कशॉप जो है आपको इमीडिएटली ये सब चीज़ें एक्सेस ऑफ द कोर्स का लिंक और बाकी जो चीज़ें वो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा. ओके, तो वो आज ही मिल जाएगा आपको. देन चैट बॉक्स में ओके, सो क्वेश्चन इज okay, how much this certification has the authentication? So till now date आप अगर इंडिया में देखेंगे तो बोन सेटिंग के लिए ऐसा कोई एक इनिशिएटिव लेके डिग्री कोर्स या डिप्लोमा कोर्स जो है वो किसी यूनिवर्सिटी ने अब तक फॉर्म नहीं किया है. तो इसमें एक वैलिड सर्टिफिकेशन जो है, जो बोन सेटिंग के लिए कोर्स जो है भारत सेवक समाज जो 1952 से वोकेशनल ट्रेडिंग और ट्रेनिंग और पैरामेडिकल फील्ड के सर्टिफिकेशन कोर्सेज चला रहे हैं, तो उनके वहाँ पे ये कोर्स रजिस्टर करके उसको जो है अप्रूव करके एक डिप्लोमा इन ट्रेडिशनल बोन सेटिंग 1 साल का पूरा करिकुलम का कोर्स, आज के डेट में यही एक वैलिड कोर्स होता है जिसमें आप थेरेपी दे सकते हैं. इसमें आप कहीं पे भी डॉक्टर नहीं लिख सकते, क्लिनिक भी नहीं आपको लिखना है, इन्वेजिव आपको कुछ नहीं करना है, मेडिसिन आपको कुछ नहीं देना है, बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट नहीं करना है, और विथ प्रॉपर कंसर्न फॉर्म और हिस्ट्री टेकिंग फॉर्म के साथ ही आपको पेशेंट को जो है ट्रीट करना है. और एक मेडिकल कंसल्टेंट भी इसमें आपको रखना ज़रूरी है. तो ये सब चीज़ों के लिए हम आपको जो है गाइड कर देते हैं. ओके, ओके. देन नीरज सर, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे एक लास्ट, तो आप ऐड कर सकते हैं. देन वी विल एग्जिट. Okay, so I think he's got offline. He'll connect re again. So meanwhile we'll go through this video जो मैंने आपको विसरल मैनिपुलेशन के लिए बोला था. Visceral manipulation is gentle, hands-on work that has to do with the internal organs such as the stomach and intestines. Visceral manipulation is gentle, hands-on work that has to do with the internal organs such as the stomach and intestines. Our organs do not stay still, they are constantly moving. For example, our lungs cause the stomach to rise and fall 12 to 20 times a minute, hour after hour, day after day, gently rising and falling.
There's also tissue between each organ holding it in place. This tissue provides a smooth surface for each organ to glide across. And when everything is working properly, all the organs slide over each other effortlessly. However, due to strain, overuse, or posture, the tissues can start to get sticky. When this happens, the tissues bind to each other, creating adhesions. These adhesions can be large or small. But when they form, they create areas of tension and pull on the attached organ. A little pulling is not a big deal, but day after day, month after month, eventually problems arise. These areas of pull can start to get irritated, and the natural movement decreases. This eventually leads to decreased comfort and reduced function of the organs. As a visceral manipulation therapist, I am trained to find these areas of adhesion and gently open and release them. It's hands-on work which is slow and precise. Often people report feeling more warmth and blood flow in affected areas. Once adhesions are addressed, the organs can go back to doing what they do best, and everybody is happy. Yes. Yes, sir. तो रजिस्ट्रेशन आए हैं, 3 पेमेंट्स आए हैं मेरे पास, जिनके स्क्रीनशॉट्स मुझे आए हैं। तो उन्हें ऑलरेडी एनाटॉमी और एक काइनेटिक बॉडी काइनेटिक चेन का लेक्चर है, तो वो शेयर कर दिया है, वो आप गो थ्रू कर लो। अराउंड वो 2 आवर्स का लेक्चर है, वो आपको एक गो थ्रू करना है, जिसके आपको प्रॉपर कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, बहुत सारे कंसेप्ट। एंड देन कल आपका जो है मेरे साथ एक कॉल होगा, वहाँ पे कुछ डिस्कशन हो जाएगा, टेक्निकल डिस्कशन जो भी है वो भी उसमें हो जाएगा, एंड देन आपको एक्सेस मिल जाएगा आपके कोर्स का भी, जो मैंने कमिट किया है, नॉट आफ्टर द पेमेंट ऑफ 6,000 बट आफ्टर द पेमेंट ऑफ 999 ओनली। ओके, तो थैंक यू फॉर एवरीवन, और आपका नाम भी आप शेयर कर देना स्क्रीनशॉट में, सो आई कैन। मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि यस सर, यस। जो भी लोग हैं, आजकल बहुत सारे कायरोप्रैक्टिक के वर्कशॉप्स हो रहे हैं। तो अगर डिवाइन टच में नहीं कोई आ रहा है, कोई फीस के लिए, या आजकल 5,000, 6,000, 7,000 में बहुत कायरोप्रैक्टिक सिखा रहे हैं लोग, तो जो ट्रेनर होगा उसको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है हमको, कि हमको जो आप थ्रस्ट सिखाने वाले हो वो कौन से थ्रस्ट होने वाले हैं। अगर इसका जवाब दे दिया तो समझ लेना कि वो जो ट्रेनर है उसको सच में कायरोप्रैक्टिक या ऑस्टियोपैथी या बोन सेटिंग एक्चुअली क्या है उसके बारे में बेसिक नॉलेज है। सिर्फ एक ही सवाल पूछना कि जो भी हमको थ्रस्ट सिखाएंगे वो थ्रस्ट कौन से होने वाले हैं। तो जब तो हम हमने पूछा था ना सर, एक रिकॉर्डिंग हमने लिया था, फोन आया था ऐसी इंक्वायरी में, वो क्या बोल रहे थे वो ट्रेनर, वो भी एक चीज है। मैंने उनको पूछा कि जो हमको थ्रस्ट सिखाएंगे, वो बोले कि हम 100+ टेक्निक सिखाएंगे। 100+ टेक्निक ठीक है, लेकिन फिर वो टेक्निक्स में जो थ्रस्ट होंगे वो कौन से होंगे। तो वो बोल रहे थे कि हाँ वो थ्रस्ट होंगे। तो वो बोले कि हाँ, वो जो हमारे ट्रेनर है वो मास्टर इन कायरोप्रैक्टिक है, मास्टर डिप्लोमा इन कपिंग थेरेपी है, मास्टर्स इन एक्यूपंक्चर है। मैं उनको पूछ रहा हूँ कि हमको थ्रस्ट कौन से सिखाएंगे, तो वो उनको समझ में ही नहीं आया। तो फिर मैंने उनको पूछा कि जो जो टेक्निक होंगे जो हम थ्रस्ट पेशेंट को देंगे, कि वो थ्रस्ट कौन से होंगे जो ऑस्टियोपैथी के या कायरोप्रैक्टिक के थ्रस्ट होते हैं। तो फिर उन्होंने मुझे नाम बताया कि MDH थ्रस्ट होंगे। हाँ। इससे एमडेक्स पहले क्या है? हाँ, नया ये मसाला जानना है। जरूरी है। हाँ, कि हम जहाँ पे सीख रहे हैं या जो सीख रहे हैं या जो सिखा रहा है उसको कम से कम उसका बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए। एडवांस तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बेसिक कायरोप्रैक्टिक या बोन सेटिंग, ये किस इसका फिलोसॉफी क्या है। उसका फिलोसॉफी है HVLA टेक्निक, LVLA टेक्निक और HVHA टेक्निक। और लोगों को इसका ये फिलोसॉफी नहीं पता है। यही है सर, सब चीजें हैं, और धीरे धीरे पता चलेगा। और जो मतलब सिखा भी रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि वो एकदम से गलत सिखा रहे हैं, या जो भी उनके नॉलेज के हिसाब से वो डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे तो वो टेक्निकल तो कुछ है ही नहीं। और सर आपने जैसे बोला वही एक लैंग्वेज, और वो कायरोप्रैक्टिक सिखा रहे हैं, तो वो ऊपर से लिखते हैं कि फ्री कायरोप्रैक्टिक कोर्स, और सर्टिफिकेशन भी उनके हिसाब से देते हैं। आज क्या हो गया है सर, कि बहुत सारे ये थेरेपिस्ट जो है ना काम कर रहे हैं, बट
वो उनको कुछ गाइडेंस ही नहीं है कि जहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल रहा है बस वो सर्टिफिकेट लेने के लिए वहां पे दौड़ रहे हैं और गलत चीजें उसमें से सीख के भी आ रहे हैं, लेकिन वो वैलिड है नहीं है बस वो इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि वो कहीं पे तो डरे हैं कि कल जाके कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। ओके। सर सर्वाइकल टेस्ट करने के पहले कायरोप्रैक्टिक में, ऑस्टियोपैथी में 4 टेस्ट होते हैं। उस वो 4 टेस्ट में से अगर 2 टेस्ट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट होते हैं। आपको कोई भी आपको वर्टिब्रल चैलेंज टेस्ट, लिगामेंट टेस्ट करनी पड़ती है, और आपको लिगामेंट टेस्ट करनी पड़ती है। तभी जब आप ये लिगामेंट, ये सारी टेस्ट परफॉर्म करके अगर ये टेस्ट निगेटिव आई तो ही कर सकते हो। अगर इनमें से कोई भी टेस्ट पॉजिटिव आई तो वो सर्वाइकल के थ्रस्ट के लिए एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसमें से अगर 2 टेस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट, वो अगर पॉजिटिव आई तो उस पेशेंट के तो गर्दन को गलती से भी हाथ नहीं लगाना है। अगर आपने उसको थ्रस्ट दे दिया तो पेशेंट हेमीपैराप्लेजिया में चला जा सकता है, वो कोमा में चला जा सकता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है। तो ये ये सारी तो ये भी चीजें अभी अगर हम, इसमें क्या है कि ये चीजें है ना, अगर कोई नॉन मेडिको है या फिर नॉन मेडिको में नहीं बोलते हेल्थ प्रैक्टिशनर है तो उनको समझ में आए ऐसे लैंग्वेज में और ऐसे तरीके से हम सिखाते हैं कि जरूरी नहीं है टर्मिनोलॉजी आपको मालूम होना जरूरी है, हाँ बट आपके रेड फ्लैग्स कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है वो समझ के आप प्रैक्टिस करो। सब आपको ही खाना है ऐसा नहीं करना है। तो इसमें डॉक्टर्स भी रहते हैं और थेरेपिस्ट भी होते हैं, दोनों के लिए वर्कशॉप भी सेम है। तो भी आगे जाके मेंटोरिंग में दोनों के लिए जो है वो डिफरेंट होता है और दोनों के रेड फ्लैग फ्लैग्स भी अलग अलग होते हैं जो वहां पे आपको स्ट्रिक्टली समझाए जाते हैं। ओके। तो अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं, जिनको डायरेक्टली 1 to 1 बात करना है आप कर सकते हो। आप इतने सब लोग रुके, आपने लगभग हाफ एन आवर जो टाइम दिया था उससे ज़्यादा आप रुके हो, मतलब डेफिनेटली आप इंटरेस्टेड हो। तो अभी क्या हो गया है कि यही लोग जो है मुझे चाहिए। हम जैसे किसी दही को जो हम स्टर करते हैं सर, उसके बाद में जो मक्खन आता है उसमें से घी निकलता है जो एक्चुअल एक्सट्रैक्ट है। तो वो पानी जो है वो चला गया है और अभी हमारे वेबिनार का एक्सट्रैक्ट जो है ना जो रह गया है अभी, और इसमें से ही वो एक सबसे यूनिक फॉर्मेशन जो है घी का वो उसमें होने वाला है और वो रिजल्ट कॉज करेगा। तो मैं सबको यहाँ पे अनम्यूट करने के लिए इनवाइट करता हूँ, आप अनम्यूट करेंगे और आपके जो भी डाउट्स क्वेरी क्वेश्चन है यू आर ओपन टू आस्क हियर एंड वी आर हियर टू डिस्कस इट विथ यू, और अप टू द लेवल उसको यहीं पे क्लियर करने का प्रयास जो है हम करेंगे। यस। क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। पूछिए। क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। किसी को ऐसा लग रहा है तो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। यस, आई हैव स्टॉप द रिकॉर्डिंग, आप सवाल पूछ सकते हैं।